लेकिन जस्ट हेलो ज्योति या गोपाल जी भाई साहब, एक्चुअल में डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जो अपना उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पीएचडी किया हुआ है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। आप ओजस्वी वक्ता है जिन्होंने शांति कुंज के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है और लोगों को मोटिवेट किया है। आज हम सबके बीच में डॉक्टर गोपाल कृष्णा इज हियर टू मोटिवेट ऑल ऑफ अस। He is a gold medalist, university topper, young scientist award winner. He has teaching consultant and national winning project in University of Texas, USA. He has addressed various academic and research programs in USA. He represented India in youth delegation to the China. He delivered lectures at many locations, including DRDO, IIT, AIMS, FRIs, and various schools, corporate houses, colleges, and sectors nationwide. He is like really pearl in Shanti Kunj. He has been with the Gurudev for many decades. जीवन क्या है? Life. What is life? That's a very important question. भगवान ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, और every person, life is very important, and life is one of the most precious gift ever any person receive it. Because life of a human being is different from the animal or any human creature on the planet. Because human being can go from down bottom earth to the top, anything, anywhere it wants. But when we're talking about any animals, if it's a lion, elephant, it will remain continuously as it is. So its life is very precious, and being a human, actually we are very much blessed that every morning we are get up with the immense opportunity and getting something out from the life. So today, actually this is the history. When you see the mankind, the people coming from university, entire mankind. When we're talking about the Kalidas, a very black man who was not knowing ABC, he became the greatest poet ever in the history in the Sanskrit. So like human being is a very big opportunity. Now what human being is facing as on today, it's the unprecedented difficult time, very challenging time. So this is the time when we need to know what is and how to deal with this. What is life management? How we go ahead about? And this is the where we have a lot to be heard from Dr. Gopal. मैं परम पूज्य गुरुदेव की अलौकिक उपस्थिति मानते हुए वंदनीय माता जी, डॉक्टर साहब एंड आदरणीय दीदी को नमस्ते कहते हुए मैं डॉक्टर गोपाल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। जी, सुनील जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पूर्वा मैम भी है ग्रुप में ना? Yes, yeah. Can you just say something about her? सभी को मेरा प्रणाम। अभी जैसे डॉक्टर गोपाल शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं की मिसेस पूर्वा मैम है, एंड पूर्वा मैम इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्ल इन DSVV, एंड हमें ये सानिध्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके साथ रहे हैं और उनकी गाइडेंस में लाइफ को बहुत समझे है। तो दिस इज द ओनली इंस्पिरेशन टू कॉल देम हियर कि गुरुजी का एक छोटा सा लाइफ मैनेजमेंट सेशन या एक्टिविटी इधर हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग भी अभी स्ट्रेस है, सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में बूस्ट होने के लिए। So what's better than activity? So we all welcome Pragya Purva ma'am here. Sorry, Namaste ma'am, most welcome. सुनील भाई साहब, प्रज्ञा मैम को फोकस कर दीजिए एक बार प्लीज, जस्ट हो सकता है तो, ताकि जी मैम प्रणाम सबकी तरफ से आपको। And thank you all for giving this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Jyoti, it's over to you now. Again, can we start now our program? Chandraji Bhai Sahab, would you like to add something? No, nothing. Gopal Bhai Sahab को स्क्रीन
करते जी हैं और फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो गया इंट्रोडक्शन। जी 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 गोपाल साहब। प्रणाम। जी आप लोग की अनुमति से इस बात की शुरुआत हम लोग करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस जीवन में हर आती जाती सांस के बीच में जिंदगी है। और जिस पल से इन बातों को आपसे हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही आपने जीवन की इतनी सार्थकता बता दी कि अपने से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने अनुजों को आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो कुछ भी दिया है, वो सब कुछ आपका आपको ही समर्पित मैं करता हूँ। और मेरे पीछे स्पेशली मैंने बैकग्राउंड इसलिए लगाया है क्योंकि इस बैकग्राउंड के बिना अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो इस कारण ये पीला के साथ थोड़ा मिक्स हरा कुर्ता भी है, ताकि हम उस हरितिमा का संदेश दे रहे हैं कि एक और जहां हम बाह्य वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कई इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आज के समय में जो संस्कृति है वो हमें ये कहती है कि हमें अपने अंदर के वातावरण, अंदर के पर्यावरण को भी बेहतर बनाने का एक प्रयास करना है। और इससे बेहतर क्या हो सकता था कि आज का दिन आप सभी ने चुना। तो शुरुआत है धन्यवाद से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए एक बार अगर हो सके प्रयास पूर्वक, तो मेरी स्क्रीन पे चूंकि वो जो लिमिटेड ऑप्शन होता है उस कारण मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, मैं कोशिश करके सबको देखूंगा। और आप सब तक मैं कोशिश यही करूंगा कि कोविड की सिचुएशन है, वर्चुअल और टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है, तो टेक्नोलॉजी को भी धन्यवाद कि अब उस टेक्नोलॉजी का हम लोग कितना क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस जगह पर आप हैं, अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र ने वहां की यात्रा जब की थी तो उसने पूरी पिक्चर्स दिखाई मेरे को। तो मैं एक बार को आपके उस परिकर को तो अपनी आंखों से घूम के आ गया, लेकिन वर्चुअली जो हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं, आइए बात को शुरुआत करते हैं। कमर सीधी कर लें अगर हो सके तो, जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइफ में किसी के कहने पे कभी भी कुछ मत करिए जब तक लगे नहीं कि उसकी जरूरत है। क्योंकि जैसे डॉक्टर भी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई सही समय पे खाना खा लीजिए, योगाचार्य भी बोलते हैं सही रूटीन फॉलो कीजिए, लेकिन उसको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जब तक महसूस ना हो। क्योंकि हो सकता है कि अपना रूटीन फॉलो करे इंसान और अगर उसके साथ 100 साल जी जाए, जीवन शरदा खत्म, तो उससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि वो भी एक डिस्कवरी होगी कि जीवन को बेतरतीब जीते हुए भी सुबह का खाना शाम को खा के, शाम का खाना सुबह को खा के, रात को जग के, सुबह सो के, कभी कुछ का कुछ करके भी अगर जीवन 100 साल जिया जा सकता है, तो ये स्वतंत्रता ऊपर वाले ने हमें दी है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ सही है तो किया जा सकता है। तो आइए बात को शुरू करते हैं। अच्छा एक मिनट जस्ट। हाँ हेलो। हाँ अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना कि फोन आ गया मेरे को, अब मन कैसे शांत करूं। ये फोन जब तक साथ में रहता है ना तो मन शांत हो नहीं पाता, क्योंकि ये फोन मेरे को दुनिया में कभी भी कहीं भी पहुंचा देगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अगर साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं साथियों, तो जीवन का अर्थ है समय। ये देख रहे हैं आप, जी जी जी, ये बिल्कुल एक सही। एक पल जो बीत रहा है, उस एक एक पल में अभी साथ में हम लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वी आर इन्वेस्टिंग आवर लाइफ टुगेदर। We are investing our life together and it depends on us कि इन movements में हमारी उम्र क्या है, it matters, but it doesn't matters because we all are learners in the university of life. In the university of life we all are learners and being a learner we have to be very aware कि जैसे कि हम अपने बच्चों को पढ़ते समय पढ़ाते समय अटेंटिव होने की बात कहते हैं, उन बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उनके गार्जियन खुद हर काम को अटेंटिव होकर करते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सूक्ष्म संवेदनशील कैमरा होते हैं, और जिस पल से इस सेशन को आपने लाइव किया है उस पल से लाइफ मैनेजमेंट की बात शुरू हो चुकी है। अभी तो गायत्री मंत्र भी नहीं किया लेकिन हो चुकी है। जीवन का अर्थ है समय, और जहां पर एक आदमी अपने जीवन को इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग साथ में बैठ करके लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा क्वालिटी ऐड कर लें। और उस क्वालिटी को ऐड करने के लिए इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। और एक और बात, मैंने ये महसूस किया कि आज के जमाने में इंसान को प्यार अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से है, इट इज माई अजम्पशन, तो वो है स्मार्टफोन एंड गैजेट्स। एक बार को मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊं, यहाँ पर मुझे खरोच लग जाए, तो सामने वाला पूछेगा भाई साहब फर्श तो नहीं टूटा, शीशा तो नहीं फूटा। लेकिन एक बार मेरे हाथ से अगर ये गिर जाए और या किसी और के हाथ से गिर जाए, तो मैं उसका क्या करूंगा या मैं खुद का क्या करूंगा ये मैं बहुत बेहतर जानता हूं। इसकी कीमत कितनी, 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी।
और इसकी हैसियत कितनी और इसकी हैसियत कितनी हमने जो लगा रखी है। तो साथियों, जीवन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा। मैं एक दिन की आपको बात बताऊं, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा मुझे इतना आया कि एक स्विच सामने पड़ा था, मैंने उस पर मुक्का मार दिया, स्विच टूट गया। वो तो भला हो कि वो स्विच थोड़ा कमजोर वाला था तो वही टूटा, मेरा हाथ बच गया। लेकिन मैंने सोचा भला हो कि कमजोर स्विच हाथ में आया, क्योंकि गुस्सा आया ना, तो थोड़ा दिखाना था दमखम अपना। तो कौन दिखा मेरे को कमजोर, तो स्विच दिखाओ, तो उसको मैंने दिया तोड़। फिर मैंने 2 दिन उसको देखा, और साथियों उस दिन मैंने एक चीज सीखी, वो प्लास्टिक का स्विच था, टूट गया। कुछ पैसे खर्च करके बाजार से फिर एक नया स्विच ले आया गया, जोड़ दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन मैंने प्री और पोस्ट दोनों फोटो खींच के आज तक रख रखी है, क्योंकि उस दिन सिर्फ स्विच नहीं टूटा था, मेरा मन भी टूटा था, मेरा दिल भी टूटा था। किसी की वाणी से, किसी के आचरण से, किसी के विचार से। उस स्विच को तो लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन जो मेरा दिल टूटा, मेरा मन टूटा, उसको क्या लोग जोड़ पाएंगे? मेरी हड्डी हाथ की टूट जाती, नुकसान फिजिकली दिखता, तो अगली बार मैं गुस्सा करने से रुकता। लेकिन अगर मेरी हड्डी एक बार को टूट जाएगी, वो जुड़ जाएगी, लेकिन मेरा मन, मेरे विचार, मेरा हृदय औरों के व्यवहार के कारण, खुद के व्यवहार के कारण, और सबसे ज्यादा साथियों पड़ोसी के नहीं, दूर बैठे लोगों के नहीं, अपने और अपने परिवार के लोगों के व्यवहार के कारण, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करने का डेमोन्स्ट्रेशन और इन रियलिटी रोल करते हैं। हम कहते हैं कि माँ तेरे से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पिताजी मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे पति देव मैं आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों में आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन दिन की शुरुआत मुस्कुरा के होती है क्या? रात का अंत मुस्कुरा के होता है क्या? दिन की शुरुआत कहीं चेहरे पर तनतनी होके तो नहीं होती, अरे गर्म पानी नहीं आया, अभी तक चाय नहीं आई, ऑफिस जाना है, ये नहीं हुआ, आप मेरी बातें नहीं सुनते। तो कृपा करके जीवन में प्रबंधन करने के लिए बड़ी 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 योजनाएं बनाने से बेहतर है। और मैं आपको नहीं बात झूठे से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके आसपास सिर्फ आप ही आप हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों के सामने तो हम लोग का कॉन्फिडेंस पूरा चलता है, बच्चों को हम बताते हैं नैतिक शिक्षा सीखो, बच्चों को हम बताते हैं दिस इज द राइट वे ऑफ कंडक्टिंग योरसेल्फ, दीज आर द एटिकेट्स यू हैव टू फॉलो। पर साथियों, जीवन की कक्षा में गुस्से में हमारी पीएचडी है, मन शांत करने में नर्सरी फेल, प्रोत्साहन देने में हमारी पीएचडी है क्या, और किसी की निंदा करने में बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब ऐसे ही होंगे। लेकिन जीवन में आप और हम ये ध्यान रखें कि आप और हम वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप और हम वो साचा हैं। आज आपके सामने जब ये बात मैं कर रहा हूं और इस मोबाइल से मैंने जब बात की, तो देखिए एक मिनट, मेरे को ना इसमें थोड़ा एंटीवायरस चलाना है, वायरस आ जाता है ना, तो एक बार मैं चला लेता हूँ। ट्रैश भी क्लीन करना है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, थोड़ा एक मिनट ट्रैश भी क्लीन कर लेता हूँ। अरे डिस्क रिफ्रेगमेंटर भी चला लेता हूँ, डिस्क क्लीनअप भी चला लेता हूँ। सब किसमें चलाऊंगा? मोबाइल में। सब इसमें चलाऊंगा मोबाइल में। मोबाइल की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, शरीर की कीमत अरबों में। इसका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन किया क्या? इसका डिस्क कुछ शेड्यूलिंग की क्या? इसके लिए एंटीवायरस कुछ रखा क्या? और जब जीवन में गुरुदेव ने बात कही कि अन्यान्य बातों की अपेक्षा, मैंने चश्मा अच्छा पहना हुआ है, मैंने कुर्ता बहुत अच्छा पहना हुआ है, मैंने दाढ़ी अच्छे से कटाई हुई है, मैंने सब अच्छे से सेट किया हुआ है, एक्सटर्नली आई एम बिहेविंग लाइक, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है? जिंदगी तो वो सॉफ्टवेयर ही चलाता है ना मेरी। तो कृपा करके आइए, शुरुआत हो चुकी है, ये तो अब प्रैक्टिकली चल गया, एक्टिविटी होते होते यहाँ तक आ गई, क्योंकि एक्टिव होना है ना एक्टिविटी के लिए, और एक्टिविटी के लिए एक्टिव गोपाल के शर्मा थोड़ी ना होंगे, हम सबको होना है, और वो भी ऑनलाइन है, हम लोग हजारों किलोमीटर दूर है। तो आइए जल्दी से एक बार कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, ये भी सबसे बड़ी एक्टिविटी है। कमर सीधी करना एक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जब सीधी होती है, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने पे बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरे कहने पे बिल्कुल मत कीजिएगा, कंफर्टेबली जैसे हैं वैसे रहिए। बच्चे आपको फॉलो करेंगे, लेकिन वो भी अपनी क्लास ऐसी अटेंड करेंगे, वो भी अपने वेबिनार्स ऐसी अटेंड करेंगे। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, एंड प्लीज डोंट लिसन मी। संभव हो कमर सीधी, संभव हो आंखें बंद। इन आंखों को जब से हमने खोला है, हमने दुनिया को देखा, दुनिया को ही देखा और दुनिया को ही देखा, और दुनिया से ग्रहण क्या किया वो हम ही जानते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, फायरवॉल, कुछ नहीं पता, गायत्री मंत्र है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। संस्कृत सिलेबस की पावर है, भावनाएं अपनी है,
भाव यही है कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाएं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। सामान्य स्थिति में आ जाए। जीवन प्रबंधन सबसे पहले हम धन्यवाद देकर के कर सकते हैं उस परमात्मा को और उस हर इंसान को, हमारे परिवार के हर सदस्य को और हर पल जिसने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारा काम किया है। हम लोग ने 7:40 में शुरुआत की थी, 9 मिनट हो चुके हैं और इन 9 मिनटों में अगर कोई कोशिश की गई है तो वो इसी बात की गई है कि जीवन का जिसका प्रबंधन करना है वो कहीं पड़ोस में नहीं है, वो मेरी पत्नी भी नहीं है, वो मेरे पिता भी नहीं है, वो मेरी माँ भी नहीं है, वो मेरा बच्चा भी नहीं है, वो मेरी बहन और भाई भी नहीं है, वो यहाँ पर है। लाइफ अगर कहीं रहती है कोई एक जगह है जहां पर जिंदगी रहती है, वो बताइए कहाँ है? आप कहेंगे क्या जिंदगी दुबई में रहती है? मैं कहूंगा कि जिंदगी इंडिया में रहती है, उत्तराखंड में रहती है, शांतिकुंज में रहती है, अगस्त भवन में रहती है। साहब जिंदगी मेरी है तो मेरे अंदर रहती है। बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर वी लिव। बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर वी लिव। एंड फिजिकली इवन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बॉडी को एक्चुअली ड्राइव करता है वो सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्रेन में चलता है हमारे विचारों के रूप में। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आपके इस पूरे के पूरे शरीर रूपी शिप का नाविक ये आपका दिमाग है। आपके शरीर रूपी प्लेन का पायलट आपका दिमाग है। आपके शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर आपका दिमाग है और उसमें आने वाले विचार हैं। हमें अपने विचारों पे काम करना है, तभी होगा जीवन प्रबंधन। आज का विषय बड़ा गजब है, नो लाइफ मैनेजमेंट। नो लाइफ मैनेजमेंट पढ़ा मैंने, ऐसे ही हुआ ना, नो लाइफ मैनेजमेंट। नहीं जरूरत है इसकी लाइफ मैनेजमेंट की, ऐसा भी समझ सकते हैं हम, लेकिन नो लाइफ मैनेजमेंट जानना होगा हमें। और इसलिए जानना होगा क्योंकि हम उस युग ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिन्होंने खुद के जीवन को एक प्रयोगशाला बना करके उसमें सारे प्रयोग किए। हम अगर उनसे नहीं जुड़ते तो वेद हमें अलग से पढ़ना पड़ता, उपनिषद अलग से पढ़ना पड़ता, पुराण अलग से पढ़ने पड़ते। अगर हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आके नहीं पढ़े होते तो हम कंप्यूटर साइंस की पीएचडी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई नई एल्गोरिथम्स बद लिख रहे होते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि ऐसी संस्था से हम जुड़े, ऐसे व्यक्तित्व से हम जुड़े। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की कक्षाओं में मेरी 110% बातों का अगर पूरा क्रेडिट है गुरुदेव के साहित्य को, माता जी के प्यार को, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की कक्षाओं को, क्योंकि इसमें से सारी बातें वहीं से निकल के आई हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो पहली बात, मैंने अपने ऊपर थोड़ी सी लाइट डाली हुई है, लेकिन वो लाइट बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली अपन है ही नहीं। वो सब ये संस्था है, इसके विचार हैं। तो हमें जीवन को अगर समझना है तो जीवन मान ले तो एक संगीत है। आप देखिए ये आपके सामने कुछ है, अब मैं बजाऊं। अब हमें पूछना है कि हमारे जीवन का संगीत सुबह से शाम तक ऐसा बजता है या फिर छोटी सी एक्टिविटी है, समझ सकते हैं। इस जीवन में एक रिदम है, उस रिदम को हम ही ब्रेक करते हैं। आप मस्तिष्क है आपका, और आपका मस्तिष्क जन्म जन्मांतरों से माना गया कि ऐसा होना चाहिए, शुद्ध बुद्ध चित्त निर्मल। लेकिन निगेटिविटी लाइफ की हम इसमें ऐसी बोलते हैं कि वो शुद्ध बुद्ध जो होता है, जब पानी साफ होता है तो हमें आर पार दिखता है, लेकिन इसमें जो विचार जो अपने सेंसेस से हम जोड़ते गए, हमने क्या कर लिया? मटमैला कर लिया अपना दृष्टिकोण, मटमैला कर लिया अपना चित्त। अब कोई कहेगा भाई साहब कौन सा बड़ा काम है, गिलास में पानी डाल दिया हो गया काम। साहब ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने सेंस ऑर्गन से व्हाट वी आर कलेक्टिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर डेवलपिंग different kind of sensors, we are developing different kind of perceptrons, जहां हम आर्टिफिशियली कंप्यूटर्स में अरबों रुपए लगा के उसे इंटेलिजेंट बना रहे हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज भगवान जाने कितना कर रहे हैं। अगले 5 मिनटों में मैं जल्दी से कुछ एक्टिविटीज आपको बता करके चीजों को आगे ले जाना चाहूंगा। मुझे याद आ गया, फिर मुझे चार्ज करना है। किसको? मोबाइल को। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा मेरा? चार्ज करना है किसको? मोबाइल को। सुबह शाम दोपहर जीवन भर चार्ज करना है किसको? मोबाइल को। खुद को चार्ज किया कभी हमने? सुबह उठे एनर्जी गेन करने की कोशिश की या एनर्जी सिर्फ खर्च करते गए?
जब से इस धरती पे आए, किस दिन हमने गहराई से सोचा? घर में जनरेटर था, हमने उसको चार्ज करने की सोची, गाड़ी में शुद्ध फ्यूल डालने की सोची, घर में इन्वर्टर था, वो डिस्चार्ज न हो जाए इसके लिए ऑफिस से फोन किया। लेकिन साथियों, ये शरीर जिसमें जीवन रहता है, ये डिस्चार्ज उस दिन से हो रहा है जिस दिन से हम इस धरती पे आए हैं। हर मूवमेंट में हजारों लाखों सेल्स मरते हैं और नए पैदा होते हैं। हम हर पल मरते हैं, हर पल पैदा होते हैं। और उस बीच में क्या एक पल भी हमने सोचा कि हम खुद को रिचार्ज करें? और आपके साथ जो योग की टीम है, मैं ये उनकी जिम्मेदारी है और वो आपको जिम्मेदारी पूर्वक बताते रहते हैं। उनकी हर एक्टिविटी को आप मानिएगा, वो आपको रिचार्ज करने की कोशिश। और उसमें से सबसे सरल अभ्यास, लंबी गहरी श्वास लीजिए, कहिए पॉजिटिविटी इन, श्वास छोड़िए, कहिए निगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट। अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दिमाग में ये चल गया, अगर दिमाग में एक बार आपके चल गया, तो ये एक रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज, सस्ता रिचार्ज। दूसरा रिचार्ज, मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अभी मैं फोटो खींचने लगूं तो आदमी ऐसे खड़ा हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात करूं, जीवन प्रबंधन की बात करनी है आपसे, बहुत गंभीर मसला है, जिंदगी से सीरियस कुछ नहीं है, तो आप भी कहेंगे प्रभु वैसे ही कोरोना के चक्कर में आदमी वैसे ही शंका में जी रहा है और तुम भी आ गए इतनी दूर से टेंशन लेने। साहब, जिंदगी में कोई बड़ी चीजें पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी को हंसाए, पत्नी पति को हंसाए, माँ बाप को हंसाए, बाप बेटे को हंसाए। हमने रिश्तों में क्या घोल रखा है? ऑफिस की फॉर्मेलिटीज भी ऑफिस में रखे, लेकिन ऑफिस में भी बॉस हमेशा मुंह चढ़ा के क्यों चले? पिता को एंग्री यंग मैन क्यों बनना पड़ता है? घर के यंग बच्चे और बच्ची को हमेशा सीरियस ही क्यों रहना होता है? हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि जिंदगी है, इस पल है, अगली पल नहीं है। गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात एक मौत। और हम उस चीज को समझें तो पल पल में है जिंदगी। लाइफ इज सिग्मा मूवमेंट, लाइफ इज सिग्मा मूवमेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ। हर मूवमेंट में खुश रहना सीखें। हमने अभ्यास किया मैथमेटिक्स का, अभ्यास किया फिजिक्स का, अभ्यास किया प्रोफेशंस का, क्या हमने खुश रहने का अभ्यास किया? लोग खुश रहना भूल गए हैं। आगे आने वाले समय में एमबीए होगा कि खुश रह लो, 5 साल सीखो खुश रहना। साथियों, हिसाब ये है कि डार्विन्स फीडबैक हाइपोथेसिस ये कहती है, साइंटिफिकली हम लोगों को बताना पड़ रहा है। आप और हम तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, हंस लीजिए, तो आप कहेंगे क्यों हंसे? ऐसा आप नहीं कहने वाले, आप मुस्कुरा लेंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। नहीं तो दूसरा कहेगा क्यों हंसे, हंसने से क्या होता है? मैं एक बार एक वर्कशॉप में गया, मैंने निवेदन किया, पहले मैंने बोला भैया साहब फ्रीडम ऑफ विल है, मुस्कुराना है तो मुस्कुरा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा मुस्कुरा लीजिए। अब वो भाई साहब भड़क गए मेरे पे, बोले क्यों हंसे, हम तो नहीं हंसेंगे। तो मैंने कहा परमात्मा, मुंह लटका के ऐसा जी लीजिए फिर कि भाई दुनिया भी कहे वाह भाई साहब मुंह लटका रहता है तो इनका, जैसे हर कोई टॉपर है जिंदगी में, मुंह लटकाने में भी कोई टॉपर होता है। तो होना चाहिए भाई सृष्टि में, तभी बैलेंस बनेगा। तो मैं जल्दी से 2 बातें आपसे कहता हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए हाथ जोड़िए, सभी हाथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। और हाथ जोड़ के हम अपने बायो इलेक्ट्रिसिटी के दोनों चैनल्स को जोड़ रहे हैं, और दोनों चैनल्स को जोड़ करके हार्ट चक्र के पास रख के लोगों ने जिसको सबसे छोटा काम समझा है वो सबसे बड़ा काम, नमस्ते करना किसी को। और मेरे साथ बोलिए, से नमस्ते हंसते हंसते, से नमस्ते हंसते हंसते। अब चूंकि नॉर्मल लाइफ में तो बार बार हंसते हंसते नहीं हो पाएगा, घर में डेली कर लिया कीजिए। सुबह उठ के बच्चों को सिखा दीजिए। आप कई दिन सीरियस रहेंगे, अपने घर के बच्चों को सिखा दीजिए कि भैया तुम मुझे याद दिलाना, से नमस्ते हंसते हंसते। घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे अच्छे से काम करेगा, और घर का सबसे बड़ा बच्चा 65 साल के बाबा जी, 65 साल की अम्मा जी, वो तो एक बार मैनिपुलेट फिर भी कर लेंगे, नहीं हम सीरियस हैं, आई एम सीरियस, लाइफ इज टू सीरियस एंड यू हैव टू बी सीरियस। सीरियस होने का मतलब शक्ल से सीरियस होना नहीं होता है। कोई आदमी खुश रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरियस नहीं है। मेरे को पढ़ना है, मेरे को सीरियस रहना है। अरे साहब, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है कि चेहरे की 32 मसल्स, आपका मूड खराब भी है, आप शीशे के सामने जाइए और बस ऐसे कर लीजिए। हंसी नहीं आ रही हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। आपकी जो 32 से ज्यादा मसल्स रिलैक्स होंगी, वो यहाँ से सिग्नल ले जाएंगी मेडुला ऑब्लंगाटा के पास। ये आपके ब्रेन को एक पार्टी थ्रो करता है, डोपामिन, अच्छे अच्छे हार्मोन्स की पार्टी अगर ब्रेन को देनी है, मुस्कुरा लीजिए, बिना मतलब के मुस्कुरा लीजिए। अब इतनी तो प्रज्ञा हमारे सबके पास है कि कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ नहीं मुस्कुराना, क्योंकि कई वैज्ञानिक इसमें भी होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं किसी की मैयत में जाए तो वहां भी मुस्कुरा ले। हे परमात्मा, गायत्री मंत्र हमने इसीलिए बोला था कि हम ऐसा समझते हैं कि सही और गलत का फैसला करना खुद को आता ही है। हम यहाँ कोई दिमागी कसरत करने या जिम करने नहीं आए, इतनी समझ किसी को भी है। तो ये हमें निर्णय लेना है
हम घर में सबसे ज्यादा इसका प्रयास करें। आप एक बार बताइए, पैसा क्यों कमा रहे हैं, प्लानिंग इतनी क्यों कर रहे हैं? साहब हम जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं। हमने एफडी किया, हमने शेयर में पैसा लगाया, हमने सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए। खुशी में इन्वेस्टमेंट क्या किया? गिफ्ट। साहब गिफ्ट से किसी को खुशी मिलनी होती तो सारे लोग खुश होते जिनके पास पैसा है। अरे मुस्कुराहट देने से, स्माइल इज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड वी हैव टू स्प्रेड इट, वी हैव टू स्प्रेड इट, वी हैव टू गो लकी एंड इट इज लाइक थिंक कि सुबह खुद को ही नमस्ते कर लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वम का प्रवचन देने वाले अगर खुद भी अभ्यास कर ले कि अगर सब में ईश्वर है, तो उस अफ्रीकन वीडियो वाले से सीख ले जो एक विदेशी कह रहा है। एक प्रयास करें मेरे साथ। एक अफ्रीकन नागरिक सबको सिखा रहा है, बोलता है भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है, वो ऐसे करते हुए बोलते हैं। आप अगर मेरे साथ बोले तो बोल सकते हैं, बोलिए, डिविनिटी विद इन मी, सैल्यूट्स डिविनिटी विद इन यू, डिविनिटी विद इन यू। अब छोटा सा मंत्र है साथियों, लेकिन इस छोटे से मंत्र में आप देख सकते हैं कि इसी में जीवन है। जब मैं दूसरे को नमस्कार किया, मैंने अपने माता पिता को हमेशा, उन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया, भाई अनजान लोगों को भी नमस्कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे इंसानी तो है। आप तो कहिए साहब, हम तो अपने डीओजी साहब को देख के भी मुस्कुरा लेते हैं। आपके इलाके में भी डीओजी साहब रहते हैं कि नहीं? रहते हैं कि नहीं? डीओजी साहब अगर मिले तो सम्मान पूर्वक हम तो उनको गली में भी मिलते हैं तो भी मुस्कुरा लेते हैं, भाई तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है। अब फिर इसमें ये ना कोई सोचे कि सामने से जानवर हमला करे तो हम, वैसे तो इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं साथियों, तो हम मुस्कुरा ले। और एक मजेदार रिचार्ज अगर आप मेरे साथ करना चाहें, मेरे ख्याल से बारिश कर सकते हैं हम सभी। ये प्रैक्टिस आप घर में जरूर किया कीजिए। ये सब प्रैक्टिस सिर्फ वर्कशॉप में करने कराने की या दूसरों को सिखाने की नहीं है। हमें अपने को, देखिए आप मेरे साथ जुड़िए, बाएं हाथ ऐसे कीजिए और एक उंगली से ताली बजाइए। 2 2 3 4 5 4 3 2 1। अब चूंकि क्या है ना, बहुत तेजी से मैं कुछ एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं, अब इसको फुर्सत से आज प्रैक्टिस कीजिए। वेबिनार खत्म हो गया तो आपका सेमिनार शुरू होना चाहिए घर में। आप लोगों को फोन करके आज बोलिएगा कि सुनो भाई मुस्कुराओ, आज मैंने तुम्हें चुटकुला सुनाने के लिए फोन किया। हमने भाई साहब इतने गजब गजब प्रयोग किए बहन जी की चुटकुले सुनाए फोन करके लोगों को, अचानक से फोन किया। वो जब भी मेरे फोन का इंतजार करता था उसको लगता था ये कोई काम ही बताएंगे। अब मैंने कहा भाई 1 मिनट सुन, आराम से बैठ जा, पानी पी ले, एक चुटकुला सुनाना है तेरे को। जिंदगी बदल जाती है लोगों की। कुछ बड़े काम नहीं करने पड़ते जीवन को मैनेज करने के लिए, कोई बड़ा सुपर साइंस ऐसा नहीं है। और हमारी ना गायत्री परिवार ने, गुरुदेव ने हमें यही सिखाया साथियों, हम ना नाक ऐसे पकड़ने कहते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, हम तो ऐसे नहीं पकड़ेंगे, हम तो ऐसे घुमा के पकड़ेंगे। तो फिर हम उन्हें नमस्कार करते हैं कि बिल्कुल चलिए आप घुमाते रहिए। अरे साहब, जब हर पल में, हर सांस में पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट की जा सकती है, तो मैं अलग से क्या टेबलेट खाऊं पॉजिटिविटी इन करने की? मेरी टेबलेट मेरे विचारों से है। भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं कि अपना उद्धार हम स्वयं करेंगे, तो अपना उद्धार स्वयं ही होगा। अभी मेरे को 22 मिनट हो चुके हैं और मैं 3 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करता हूं, ताकि उसके बाद एक एक्टिविटी पूर्वा जी कराएंगी और फिर उसके बाद हम लोग फोरम ओपन कर लेंगे। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, इसको हम लोगों ने रैप बनाया। हमने कहा पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने क्लास में जब से सिखाया, डीएसवीवी का हर बच्चा जहां भी जाता है, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। एंड इफ यू डू हैव एनी डाउट, कम फॉर अ बाउट। क्यों? क्योंकि कहानी वही है जो जैन साधु, जैन संत से एक बार बात हुई किसी की, और उसने पूछा कि आप अपनी लाइफ का सीक्रेट बताइए। तो उसने कहा सीक्रेट तो बताऊंगा, लेकिन अभी रुक जाओ, फिर बताऊंगा। जाते जाते जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई कि मेरे अंदर देयर आर 2 dogs फाइटिंग इनसाइड मी ऑलवेज। और उसमें एक को सिंबलाइज किया है डिफरेंट कलर से, एक को डिफरेंट कलर से। उन्होंने कहा है जीतता वो डॉग है जिसे मैं फीड करता हूं। एक डॉग है पॉजिटिविटी का, एक है नेगेटिविटी का। एक भेड़िया है पॉजिटिविटी का, एक है नेगेटिविटी का। कोई कुछ नहीं करता, आप चयन करते हैं आपको कौन से विचार पसंद है। मेरे कान में किसी की चुगली हिम्मत नहीं है कोई कर दे। मेरे पिता के बारे में कोई मेरे को बोल सकता है मेरे कान में आके? वो तब बोल सकता है जब मैं उसके सामने ठहरूं, उसको एक बार एक्सप्रेशन दूं, समय दान करूं, तब वो बोलेगा। हमें सोचना होगा। इन सेंस ऑर्गन्स को हम किराए पे चलाते हैं, इन सेंस ऑर्गन्स को हम रियल लाइफ में, और हमारे पीछे हमारे बच्चे प्रैक्टिकली लाइफ मैनेजमेंट का प्रोफेसर आपको बना करके आपसे प्रैक्टिकल सीख रहे होते हैं। वो स्कूल में नहीं सीखते वो सब चीजें जो आप और हम सिखाते हैं उन्हें। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, कैसे बातें सुननी है, कैसे बातें करना है फोन पे, सोशल मीडिया पे और लाइफ में। अब जल्दी से मैं आपको वो चीज बता देता हूं जो
अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर ही देता हूं। मेरे ख्याल से ये, और अब इसके बाद आप लोग अपनी एक्टिविटी करते रहिएगा। अब कोई कहेगा ये तो हमें पता है, तो पता तो है ही सबको, कुछ नहीं करना है। गुरुदेव ने भी कहा बेटा इस दुनिया में ज्ञान वही लिमिटेड है, महापुरुष वो बन जाते हैं जो उसमें से एक को जी जाते हैं। नजरिया अलग अलग है लोगों का, ये अलग अलग लोग घर के बाहर नहीं मिलते, घर में भी मिलते हैं। एक तरफ पिता हो सकता है, एक तरफ पुत्र हो सकता है, एक तरफ पति हो सकती है, एक तरफ पत्नी हो सकती है, एक तरफ माँ हो सकती है, एक तरफ पिता हो सकता है, एक तरफ भाई हो सकता है, एक तरफ भतीजा हो सकता है। आप इस फोटो को घर में चिपका लीजिए, और घर में चिपकाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि यहाँ नहीं चिपकेगी। हम वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी की वर्कशॉप्स करते हैं और ऑफिस में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। घर के लैब में हम क्यों चूक जाते हैं इसको? हमें सुख और शांति चाहिए तो परिवार में लाने से आती है। परिवार में कलह करके किसी को आज तक सुख शांति मिली नहीं है। कौन सही है दोनों में से? पिता सही है या पुत्र सही है? भाई सही है या भाई सही है? भाई सही है या बहन सही है? बहन सही है या बहन सही है? हम सही है या कोई स्ट्रेंजर सही है? लड़ लीजिए, माथा फोड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अरे ईगो को छोड़ के आना पड़ेगा, अपनी जगह को बदलना पड़ेगा, दूसरे की जगह पे जाकर देखना पड़ेगा। एम्पैथी कहते हैं इसको। एक संदेश है एम्पैथी का। जीवन में जब से हमने गुरुदेव के विचारों को पढ़ के इसको अपने जीवन में जागृत किया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। भाई आपको चीज उधर से ऐसी दिख रही है, हमें ऐसी दिख रही है, अब हम क्या करें? आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहें। एक कहता है भगवान है, भगवान को मान के वो चुपचाप उपासना उसकी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो किसी को मजबूर नहीं कर रहा है कि तुम मानो कि भगवान है। एक कहता है भगवान नहीं है, लैब में प्रूफ करो। उससे हम पूछते हैं परमात्मा इधर आओ बैठो, इलेक्ट्रॉन पढ़ा? हाँ। प्रोटॉन पढ़ा? हाँ। न्यूट्रॉन पढ़ा? हाँ। देखा अपनी आंख से कभी? किसने दिखाया तेरे को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? नहीं साहब, वो तो किताब में पढ़ा, फोटो देखी। हमारे ऋषियों ने हमें किताब पढ़ाई और हमें भगवान बताए। हम तुमको कहने नहीं जाते और तुम हमारी आस्था पे चोट क्यों करते हो? बड़ी वैज्ञानिक चीजें हैं, हमें स्ट्रेंथन होकर बताना पड़ेगा। लाइफ इज इंपॉर्टेंट। हम किसी दूसरे को मजबूर नहीं करें कि आप हमारी बात मानो, तो हमारी बात कोई मजबूर न करे कि हमें बदलो। सबकी जिंदगी अलग अलग है। और ये है फाइनल, आप हर दिन देखिएगा, जब भी कुछ हो घर में याद कीजिएगा। एक तरफ से ये दिखेगा, एक तरफ से 9 दिखेगा। सही कौन है आपको निर्णय करना है। और ये कोई और नहीं है, ये हम ही लोग हैं। एक तरफ गोपाल के शर्मा खड़ा है, दूसरी तरफ पूर्वा जी खड़ी है। अब हम दोनों को डिसाइड करना है कि उसको क्या दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है। और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं चुपचाप कहूं पूर्वा रुको, मैं तुम्हारी तरफ आके देख लेता हूं क्या दिख रहा है। साथियों प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, हम लोग जिंदगी की यूनिवर्सिटी में अभी कहीं नर्सरी क्लास में तो नहीं है, या जिंदगी की यूनिवर्सिटी में अभी किंडरगार्टन में तो नहीं है। हो सकता है मेरे घर की बेटी, मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया हो लाइफ की यूनिवर्सिटी में। मैं उसका भले ही बाप हूं, मैं भले ही उसकी माँ हूं, मैं भले ही उसका दादा हूं, दादी हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन ये सच है। हमें ये देखना है कि अपने ब्रेन को हमें पार्टी देनी है, पॉजिटिविटी से उसको जोड़ना है। और ये कहानी जो है, ये आप याद दिलाइएगा, लास्ट में सुनाऊंगा, बस फोटो अभी देख लीजिए, बाकी कहानी आपको याद आ गई होगी कुछ। और सुख और शांति पाना है तो उसका अभ्यास खुद से ही करना है। और अंत में यही बात कहनी है आपसे, घर हो, परिवार हो, समाज हो, हमको सुख शांति मिल जाए, लेकिन अगर पड़ोसी सुख नहीं है, सुखी नहीं है ना, तो उसके घर से अगर एक बंदूक चलेगी तो उसकी गोली मेरी तरफ भी आ सकती है। वी आर सिस्टम, वी आर टुगेदर। प्रकृति रुष्ट होती है, और अगर इंसान रुष्ट होता है तो वही बम फोड़ के दुनिया को नष्ट करने की तैयारी करता है, वही कोरोना आता है। तो अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी के लिए इतना ही। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूर्वा जी से कि वो लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ में प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, अनम्यूट करें खुद को और एक एक्टिविटी के थ्रू सबसे शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जुड़े रहेंगे। ओवर टू पूर्वा प्लीज। थैंक यू सो मच। आइए अब हम इस एक्टिविटी के माध्यम से जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। ये आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, ये क्या है? दिस इज अ जार। बट अब जार मेरे ख्याल से पूर्वा की आवाज सब तक आ रही है क्या? वहां नेटवर्क का इशू है। पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये आपको एक खाली जार दिख रहा है। अब इसको हम अपनी लाइफ के से समझते हैं। जब मैं इस जार में ये ब्लॉक्स डालती हूँ,
एक एक करके इन ब्लॉक्स को मैं इस जार में डाल रही हूँ और ये जो ब्लॉक्स है इस जार को भरते जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि आपको अब इस ब्लॉक में लग रहा है में और कुछ ब्लॉक्स बिल्कुल टूट जाएगा, ब्लॉक इसके अंदर नहीं जा सकता है। बट अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जब हम यहाँ पे ये छोटे छोटे पेबल्स डालते हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी हमें इस जार में जगह बिल्कुल नहीं लग रही थी, बट अब जब हम छोटे पेबल्स डाल रहे हैं तो ये किस तरीके से इस जार को पेबल्स के माध्यम से फिल कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरे पेबल्स डाल रही हूँ, ये छोटे छोटे पेबल्स जो कि जहाँ पे जार में जगह बची हुई थी तो उसे किस तरीके से ये फिल करते जा रहा है, राइट। अब देखिए अब पूरे पेबल्स भी यहाँ पे इस जार में भर गए हैं, बट ये पेबल्स भरने के बाद भी क्या आपको लगता है कि अब और कोई पेबल्स इसके अंदर आ सकते हैं? अगर मैं ढक्कन बंद कर दूं, राइट, क्योंकि ऊपर तक फिल हो गया है और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि अब आपको कोई पेबल्स डालने की इसमें जगह दिख रही है? यस और नो? नहीं नहीं नो, बिल्कुल नहीं दिख रही है, राइट। बट अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे सैंड लाती हूँ, रेत, और यहाँ पे रेत को इस जार में फिल करना शुरू करती हूँ, तो आप देख सकते थे जिस जार में थोड़ी देर पहले ही पेबल्स ने पूरा जार भर दिया था, अब वो रेत इस जार में किस तरीके से अपना जगह बना रही है, किस तरीके से आ रही है, राइट। आप सभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ से रेत डाल रही हूँ और ये रेत जो है अपनी अपनी जगह बना के जार के अंदर पूरी तरीके से जा रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज आवर लाइफ ऑल्सो नाउ। क्योंकि आज एनवायरमेंटल डे भी है तो एक कोशिश ये थी कि जो एनवायरमेंट की जो चीजें हैं उसके थ्रू आपको यहाँ से कुछ मैसेज दिया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर इस जार में ब्लॉक्स भरने के पहले अगर पूरा सैंड भर देती तो क्या ब्लॉक्स के लिए जगह होती? यस और नो? नो, राइट। अगर मैं पूरे पेबल्स डाल देती, सैंड एंड पेबल्स पूरे डाल देती, तो क्या इस जार में इन ब्लॉक्स के लिए जगह होती? यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज व्हाट इज आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ये जो ब्लॉक है, जो बड़ी चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, दिस इज आवर फैमिली, आवर रिलेशनशिप्स, आवर हेल्थ, आवर चिल्ड्रन, and this is what is the main thing. First things first, the important thing of our life. अगर और दूसरा जब मैंने पेबल्स डाला तो पेबल्स हमारी लाइफ में क्या डिनोट करते हैं कि जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास घर है, राइट, हम जॉब ले जा रहे हैं, आई तो ये जो सैंड थे क्या थे? बहुत ही छोटी मोटी चीजें जिनका हो सकता है ज्यादा मायने हमारी जिंदगी में नहीं हो, जैसे शॉपिंग करना, मूवीज देखना, स्मार्टफोन में घंटों घंटों लगे रहना। Like being an assistant professor in Department of Psychology in Dev Sanskrit Vishwavidyalaya, my university gave me an opportunity to do PhD in cyber psychology. So उसमें मैंने इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर भी टेस्ट क्वेश्चनर्स वगैरह बच्चों से फिल कराया, रिसर्च करी उसके ऊपर भी। So what I get to know that these all are the very small things like smartphone addictions जो होता है आजकल लोगों को। तो ये जो सैंड रूपी जो चीजें हैं, अगर हम इस सैंड रूपी चीजें इस द जार ऑफ लाइफ में डाल देते तो क्या हम अपने रिलेशनशिप्स को उतना समय दे पाते हैं? हमें आज ये देखना होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में है, हमारे पेरेंट्स, गॉड, भगवान, जिनको हम इतना मानते हैं। भगवान क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे चांसलर सर डॉक्टर प्रणव पांडे जी गीता ध्यान की क्लासेस लेते हैं, तो उसमें गॉड की डेफिनेशन यही बताते हैं कि गॉड मतलब
सत्प्रवृत्तियों और सद्गुणों का समुच्चय। जहाँ पे बहुत अच्छे सत्प्रवृत्ति होते हैं वो गॉड होते हैं, राइट। तो हम भी ये सब सारी चीजें जानते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारे लाइफ में वो हमें देखना होगा, हमें समय उन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा देना होगा, उन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना होगा। हमारी हेल्थ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो हमें हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ। ऐसे कहते हैं कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, पर अगर हेल्थ चली गई तो हमारे पास से सब कुछ चले गया। तो हमें रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी के साथ में इस हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और हमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे अपने लोगों को देना है। हम अपने आप की भी वैल्यू करें और अपनों की भी वैल्यू करें। हमें ये देखना होगा कि हम ज्यादा टाइम किसको दे रहे हैं, अपने फैमिली को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ प्रॉपर हम टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अगर हमारे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है तो क्या हम उनसे प्रॉपरली बात कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपरली जाके बैठ रहे हैं, उनसे हम अच्छे से प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। और जो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें जो हमें हमारी लाइफ में इतना जो महत्व नहीं रखता है, जो आजकल की चीजें हो गई, स्मार्टफोन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, कंपल्सिव इंटरनेट यूज हो गया है, हमें हम यूज करते जा रहे हैं घंटों घंटों, मम्मी आवाज दे रही है, पापा आवाज दे रहे हैं, बच्चों आ जाओ खाने आ जाओ, या साथ में बैठते हैं फैमिली टाइम करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीजें आजकल मिस हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सैंड। बिकॉज ये सैंड रूपी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसके कारण आज हम इन सब चीजों को मिस करते जा रहे हैं। सो एट लास्ट मैं आप लोग को वही बोलना चाहूंगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं जो इस सेशन में कहना चाहूंगी, ग्रैटिट्यूड जो हमें हमेशा करना चाहिए लोगों के लिए, चाहे हमारे मम्मी पापा हो। जैसे हम सभी जानते हैं जो मदर होती है वो कितना पेन्स टेकिंग एफर्ट करके बच्चे को जन्म देती है, हमारे लिए रोज खाना पीना बनाते हैं। पापा होते हैं वो हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, बच्चों की नीड्स को पूरी कर रहे हैं, और घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो प्यार करते हैं हम सभी को। तो हमें हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रहनी चाहिए, मन में हमेशा होती है, पर क्या वो मन से बाहर निकल के आती है? क्या हमने आज तक के, हम बहुत बड़े कितने भी बड़े हो जाए, पर अपने, अगर मैं 40-50 साल की भी हो जाऊंगी तो भी मैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने इन लॉज के लिए वही 22-25 साल की लड़की रहूंगी जब मैं शादी करके आई थी, या मैं वही 1 मंथ की बेबी या 1 डे की बेबी रहूंगी अपने मदर फादर के लिए। तो आज हम लोग ये सोचे कि हम किन किन लोगों को हमें ग्रैटिट्यूड अपना देना चाहिए, उनको थैंक यू करना चाहिए। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें ये याद रखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है लाइफ की, उसे हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करने की जरूरत है। और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग टू गॉड कि थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, आपने इतना अच्छा वर्ल्ड दिया है हमें, इतनी अच्छी आपने जगह दी है वर्ल्ड में, और इतने अच्छे लोग हमारे आसपास हमें दिया है। And last but not least, I would like to give my thanks to the organizing committee of this webinar and to the intellectual audience too, that you all have given me an opportunity. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से अपूर्वा जी, बहुत अच्छे से बताया। या चंद्रेश जी साहब कंटिन्यू करें। थैंक यू अपूर्वा जी। सबसे पहले क्या अपना ये जो वर्ड आपने यूज किया ग्रेटिट्यूड, सो सबसे पहले मैं आपका और डॉक्टर गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें इंटरनल फीलिंग हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्पेंड अ कंसिडरेबल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू। या चंद्रेश जी साहब, इट्स ओवर टू यू। गोपाल भाई साहब से अब रिक्वेस्ट है, उनको आप फोकस कर दीजिए, और सभी परिजन जो भी जिनको जो क्वेश्चन पूछना है, जो भाई साहब ने इतना अच्छा सेशन लिया, और पहले वो भाई साहब को, अपने गोपाल भाई साहब को कंक्लूड करना है, स्टोरी भी बतानी है, वो आप बताएं। स्टोरी है या मैं आ रहा हूँ ज्योति वहाँ पे जी। थैंक यू वेरी वेरी मच पूर्वा इन बिटवीन फॉर कंट्रीब्यूटिंग, और आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी मजेदार चीज थी कि किसी को याद है स्टोरी भी बतानी है, क्योंकि कई क्लासेस पढ़ाई है जहां पर प्रवाह में इंसान ऐसा निकल जाता है कि कोई एक बात रह जाती है, तो वो रह जाने वाली बात को मैं लाइफ से रिलेट करना चाहूंगा। साथियों, पहले एक गंभीर बात आपसे कहना चाहूंगा, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए,
और न जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए। याद करिएगा, आपकी और हमारी जिंदगी में मुझे याद आता है कि मेरे एक दोस्त से मैं मिला था लगभग महीने भर पहले, और उससे एक दिन सप्तऋषि के बीच में शांतिवन में खड़े होकर मैंने एक बात की थी, और उस दिन वो हर दिन से अलग बात कर रहा था। उस दिन मैंने उसको खूब अप्रिशिएट किया था, और उसके एक महीने बाद मेरे को पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा दोस्त हो, मेरे अपने हो, अपनों को जाते कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन ये दुनिया का सच है। आज ग्रेटिट्यूड के नाम पे सबसे पहले अपनी कलम उठा के कम से कम टॉप 5 लोगों की लिस्ट बनाइएगा और उनको आज फोन करके ग्रेटिट्यूड दीजिए। 5 ना हो सके 3 की बनाइएगा, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। इट इज अ चैलेंज, द वे वी एक्सेप्ट कीका, क्या काकी कीकी के चैलेंज होता है ना या द वे वी एक्सेप्ट दाढ़ी वाला चैलेंज, द वे वी एक्सेप्ट साड़ी वाला चैलेंज, इज द चैलेंज। इट इज माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, एंड नो वन एल्स इज गोइंग टू जज यू। आप खुद के न्यायाधीश होंगे, और आपका जो चित्त है, जो अंतर्मन है, जो गहना करणों गति है, वो जज बैठ के न्याय देगा आज कि आपने एटीट्यूड। और फिर आप दूर दूर ढूंढने जाएंगे, अरे भाई साहब दाएं देखिए पिताजी होंगे, उनको अभी सीधे बोल दीजिए, बाएं देखिए धर्मपत्नी होंगी, उनको बोल दीजिए, दिल से बोलिए। मैं अपने पिता से अभी इस कोरोना के टाइम में, जब मैं अभी विश्वविद्यालय में आके काम कर रहा हूँ, मैं शांति हूँ गया, एक दिन शाम को मैं गया, मैं पिताजी सो रहे थे, मैंने कहा पिताजी उठिए, पिताजी उठे, पिताजी बोले क्या हुआ, मैंने कहा पिताजी गले लगना है आपसे, काफी दिन हो गए। मुझे खुद याद आया अपने पिता से गले लगे मुझे कम से कम नहीं तो 7 साल हो गए। इस दुनिया में पता नहीं है साथियों कि कब कौन रहे कौन न रहे, और जीवन में इंसान के सिर्फ पछतावा शेष रह जाता है कि काश मैं अंतिम बार उससे अच्छा व्यवहार किया होता, काश मैंने अंतिम बार उससे ठीक से बात की होती, फोन पे, आमने सामने। और सबसे ज्यादा कम से कम आमने सामने वालों की हम सोच रहे। अपनी पत्नी को जब मां बनते इंसान देखता है ना, तब अपनी माँ के बारे में याद करता है। और आज एक और बात आपको मैं कह दूं, हैप्पी बर्थडे जब भी अपना मनाया करिए, उस माँ को बहुत धन्यवाद उस दिन दिया करिए, क्योंकि असली हैप्पी बर्थडे मेरा नहीं, मेरी माँ का था। क्योंकि मेरे को इस धरती पे लाने के लिए वो अपनी जिंदगी को ताक पे रख के लड़ी थी। उस पल में उसको इतना दर्द हुआ था जितना सैकड़ों हड्डियां टूटने में किसी इंसान को होता है, विज्ञान कहता है। और कोई भी मर्द है, सम्मान सभी का है, लेकिन हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम नारी जागरण के लिए बाहर जाके जो नारियों को ढूंढते हैं, और नारीवाद की बात करने वाले जो अखबारों में और ब्लॉग लिखते हैं, या पुरुषवाद की बात करने वाले बाहर जाके जो नारेबाजी करते हैं, घर की नारी का सम्मान करें, घर के पुरुष का सम्मान करें, घर के बच्चे का सम्मान करें, घर के बड़े का सम्मान करें। आपके घर में कोई वो बच्चा पलना चाहिए जो बाहर जाके बाहर की नारी का सम्मान करे। मेरी पत्नी ने मुझे खाना 10 दिन अच्छा दिया, मैंने एक दिन उसकी मुंह पे तारीफ नहीं की। मेरी माँ ने हजारों दिन मेरे को अच्छा खाना दिया, एक दिन उसकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन ऑफिस से झगड़ के आया हूं और मैं पत्नी को डांट दूंगा। सॉफ्ट टारगेट, मेरी माँ सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, पति भी हो, बराबरी की बात कर रहा हूं। अब 2-3 कहानी, एक कहानी की जगह 2-3 सुनाऊंगा। पहली कहानी एक बच्चे की। पिताजी ऑफिस से आते हैं, बच्चा आज ड्राइंग कर रहा है। पिताजी कहते हैं अरे वाह बेटा ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग करते रहा करो, वेरी गुड। बच्चे ने सोचा पिताजी को अच्छा लगा, ड्राइंग करता हूँ। दूसरे दिन पिताजी ऑफिस से आए, मूड थोड़ा खराब था, बच्चा आज ड्राइंग कर रहा था क्योंकि एक दिन पहले उसे रीइंफोर्समेंट मिला था। पिताजी बोले क्या रे क्या कर रहा है, ये क्या ड्राइंग वॉइंग करता है, चलो पढ़ाई कर, पढ़ता लिखता नहीं है, जा पढ़ाई कर। अब बच्चा कंफ्यूज, क्या करूं भाई, कल बोल रहे थे ड्राइंग करो, आज बोलते हैं पढ़ाई करो। अब अगले दिन पिताजी आए, पिताजी का मूड फिर ठीक, आज बच्चा पढ़ाई कर रहा था, बोले क्या करते रहता है तू भी पढ़ाई, खड़े हो जा खेल ग्राउंड में, वो देख पड़ोसी वर्मा जी का लड़का खेल रहा है, जा तू भी खेल। अब उसको आज खेलने भेज दिया। अब अगले दिन आप रहे थे ऑफिस से, ऑफिस में बाहर खेलते हुए दिख गया, कहे समय बर्बाद करता है, कुछ नहीं करना, जा पढ़ाई कर। कंफ्यूज हम हैं, हमने अपने आसपास वालों को कर रखा है सबसे ज्यादा। परेशान हम खुद हैं, परेशानी कहीं और नहीं है, विचारों में। इसलिए गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति। दूसरी कहानी उस बच्चे की जिसके पिता ने जिस दिन पहचान लिया कि बेटा एंगर कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद तेरे को कुछ नहीं दिखता, सामने दिखता नहीं है कि ये मेरी ही पत्नी है, सामने नहीं दिखता कि ये मेरा ही भाई है। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए उस भाई को ही पहुंचा दिया ऊपर। उन दोस्तों का क्या, उन साथियों का क्या जो किसी की बारात में नाचने गए थे और हर्ष फायरिंग करके अपने ही साथी को ऊपर पहुंचा दिया, और फिर बोला सॉरी गलती हो गई, थोड़ा पी ली थी, समझ में नहीं आया, सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर देंगे आपको लोग।
उस बच्चे ने जब जाना कि उसको गुस्सा आता है, उसने अपने पिता से कहा, पिता ने कहा बेटा ठीक है, तेरे को जब भी गुस्सा आया करे सामने जाके उस लकड़ी की बाउंड्री पे कील ठोक दिया कर। जब भी गुस्सा आता कील ठोकते जाता। वो चित्र मैंने आपको दिखाया अभी। और वो कील ठोकते ठोकते इतनी सारी दीवारें भर गई। उसने एक दिन कहा कि बेटा क्या कर रहा है, तो कहता पिता अब गुस्सा कंट्रोल हो रहा है। काफी कीलें गड़ गई थी। तो पिता ने कहा आप जब गुस्सा आए तो एक एक कील निकालते जाना। एक एक कील निकालते गया निकालते गया निकालते गया। अब दिन वो आ गया जब उसका गुस्सा खत्म हो गया। बहुत खुश हो गया पिताजी मेरा गुस्सा मैंने खत्म कर दिया। पिताजी उसको लेके गए, क्या बेटा देख गुस्सा तेरे को आता था, तुझ में आता था, बाहर से आता था, गुस्सा तूने खत्म कर दिया, लेकिन देख ये दरख्तों पे जो भी आज सुराग हुए हैं ये हमेशा हमेशा के लिए होगा। साथियों जीवन जीने के लिए उस जुबान को, दो प्रयोग हैं इसके, स्वाद लिप्सा, अंदर गड़बड़ होगी, वाणी गड़बड़ाएगी, जीवन गड़बड़ाएगा। गुस्से में अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। अरे भाई गुस्से को इमोशनल इंटेलिजेंस से पहचानिए। गुस्सा आ रहा है ना, उसको आने दीजिए, बोलिए आजा 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 गुस्से आजा, बैठ बैठ इधर साइड में बैठ। गुस्से को रोकिए मत, रुकने से रुकेगा नहीं वो। आपको अपने मन को अपना मित्र बनाना होगा, उसको प्यार से बुलाना होगा, पास में बिठाना होगा, उसको कहना होगा अजी सुनती हो, इसको थोड़ा नींबू पानी पिला दो। ये कौन है? गुस्सा है, आया था मेरे ऊपर, अपने बच्चे के लिए, अपने पिता के लिए। उसको बिठाइए, कंफ्यूज कर दीजिए उसको। समस्या को आप कंफ्यूज कर सकते हैं। समस्या कहे मैं समस्या में तेरी वाट लगाऊंगी, समस्या को कहे आजा समस्या, तू अपने लिए समस्या होगी, मेरे लिए नहीं, आजा बैठ जा। कोई भी इंसान हो जिसकी शक्ल देखते ही आपको हो सकता है मूड स्विंग हो जाता हो, आप उस इंसान को देख के मुस्कुराने लगे। शक्लें देख के लोग परेशान हो जाते हैं। और आखिरी कहानी, और उससे बाद में एक भ्रष्टाचार का खुलासा पहले कर देता हूँ। एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा हूँ और बात अपनी खत्म करूंगा मैं। पता है क्या है वो? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी बैंक में नहीं होता है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहां से होता है। इस जिंदगी को चलाने के लिए अगर कोई एक फंक्शनल चीज है तो वो है सांस। सांस गई आई नहीं, जिंदगी खत्म। सांस गई आई नहीं, जिंदगी खत्म। सांस के आने जाने के बीच में है जिंदगी, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रीथिंग, एंड वी आर लिविंग लाइफ फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स, 70 इयर्स, 40 इयर्स। एक मिनट में अगर 14 से 20 बार हम सांस लेते हैं, और अगर हम उसे सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो एक मिनट में कितनी बार गलती की हमने? 14 से 20 बार। एक घंटे में, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में, और मैं 33 साल का हो गया। इतनी बार खुद की गलती तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन एक बार मेरा पड़ोसी मेरे को कुछ बोल दे, आई विल सी यू इन कोर्ट। मेरी पत्नी मुझको कुछ बोल दे, तुम बोल रही हो। कितना बड़ी नाइंसाफी और भ्रष्टाचार है। पहली बात अपने लंग्स और जीवन के साथ, दूसरा व्यवहार में औरों के साथ। और आखिरी कहानी, इस कहानी को सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुस्से की कहानी है। एक पिता अपने पूरे जीवन के अरमान अपनी पत्नी की साड़ियों के लिए, अपने बच्चे के कपड़ों के लिए लगाता गया। अपने लिए कुछ नहीं लेता था, दिन रात मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था। कभी भी ना पत्नी को कह पाता था कि मैं जब जाता हूं तो मुझे कितना कष्ट होता है, ऑफिस में लोगों से मैं कितना परेशान होता हूं, मेरे शरीर में भी दर्द है, कभी नहीं बताता था। मेहनत करता था, लेकिन घर जैसे ही आता था तो कुछ उलाहने सुन लेता था। कभी पत्नी बोल देती थी, कभी बच्चा बोल देता था, कभी पिता बोल देता था, कभी माँ बोल देती थी। चुपचाप सुनता सहता। अपने सारे अरमान को इकट्ठा करने के लिए उसने गुल्लक बना रखी थी। उस गुल्लक में वो पैसे इकट्ठे करता था, न जाने किस लिए, शायद कोई बचपन का सपना था। बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करता, बच्चों को अच्छे हॉस्टल में पढ़ाने की तैयारी की, पत्नी के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की, परिवार के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की। सब कुछ करते करते एक दिन वो दिन आया जब उसको जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी होने का दिन था। उस दिन वो बड़ा खुश था और बड़े खुशी खुशी घर से निकला और सबको बोल के आया कि आज मैं कुछ करके आऊंगा। साथियों वो बाहर गया और उसकी सपनों की एक फेवरेट कार थी, उसको खरीद के लेके। उसको कार बड़ी पसंद थी वो बचपन से। आज उसके जीवन में वो दिन आ गया था अपने लिए बाकी कंफर्ट्स को छोड़ के कि वो कार लेके आया। कार बाहर खड़ी थी, पूजा वूजा कर ली थी उसकी, घर में बैठा था, कॉफी पी रहा था, लेकिन बार बार कार देख रहा था क्योंकि वो सपनों की कार थी उसकी। उसका बच्चा ना वहां अपने साथियों के साथ खेल रहा था और खेलते 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 उस कार के पास पहुंचा। और उस कार के पास पहुंच के अचानक से उसने कंकड़ उठाई और कंकड़ उठा के उस कार पे कुछ डेंट कर दिया उसने। उधर वो दूर में बैठा था, उसने जैसे ही देखा कि उसकी सपनों की कार जो आ जाई है और उसके बेटे ने वहां पर खेलते खेलते कुछ कंकड़ से डेंट कर दिया है, वो वहां से दौड़ा और तेजी से दौड़ा। उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको सामने रखा, यहां से ईंट उठाई, मारते गया। उसके सपनों की कार को आज उसने डेंट लगा दिया, पहला ही दिन था।
उधर से उसकी पत्नी दौड़ती हुई कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, तुम्हारा अपना बच्चा है। लेकिन जब तक उसको कुछ समझ में आता, उसके बच्चे का हाथ लहूलुहान हो चुका, उसको दौड़ के एम्बुलेंस में ले जाया गया, अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में जब ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसको तुरंत इमरजेंसी केयर दिया और उसको जब बेड पे लिटाया और बाहर आकर के कहा कि अब इस बच्चे का हाथ शायद ही बच पाएगा, शायद काटना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। साथियों, उस पल में जो वो पिता था इस बात को सुन रहा था, वो हिम्मत करके अंदर गया। माँ तो नहीं जा पा रही थी क्योंकि अब वो अपने पति को नहीं दिखना चाहती। पिता जब अंदर गया, बच्चा अभी भी मासूम सा अपने पिता से पूछता है, पापा मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना? क्योंकि उसे पता है कि पापा उसके साथ खड़े हैं। साथियों, उस पल उस पिता की क्या हालत रही होगी, जो पिता था लेकिन पल भर के लिए वो पिता नहीं रहा। वो गुस्से का एक ऐसा एजेंट बन गया कि उसको पता ही नहीं चला कि उसने जिसका हाथ तोड़ा है वो कोई और नहीं, उसका बेटा है। और उसका बेटा अभी भी बचपन में अपने पिता से कह रहा था, पापा मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स बाहर जाके उसको बताते हैं कि अब मुश्किल है, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। पिता वहां से सीधा दौड़ा, रोते रोते पश्चाताप में गाड़ी के पास पहुंचा। और अब वो एक बार देखना चाहता था कि वो जहां डेंट हुआ है तो उसने उसके कारण क्यों अपने बच्चे को इतना कष्ट दिया। साथियों, जब वो उस गाड़ी के पास गया और उस डेंट को उसने पढ़ा, तो वहां कोई डेंट ऐसा नहीं लगा हुआ था, वहां उसके बच्चे ने लिखा हुआ था, आई लव यू पापा। उस बेचारे बच्चे को ये पता नहीं था इस दुनियादारी में कि इस दुनिया में इंसान से ज्यादा महत्व कभी कभी समान का होता है। उस पिता ने उस दिन जब उस गाड़ी के ऊपर लिखा देखा बच्चे की उस भावनाओं को कि आई लव यू पापा, उस दिन साथियों उस पिता से रहा नहीं गया और उसने सुसाइड कर लिया। एक पल का गुस्सा, सपनों के साथ उसकी टक्कर, बेटे ने अपना हाथ खोया, बेटे ने अपना बाप भी खोया। पति ने जीवन दिया तो पत्नी का पति खोया, विधवा हो गई, वो परिवार बर्बाद। पल भर में एक विचार, एक संस्कार, एक भाव, जीवन जेल में चला जाता है या जीवन ही छूट जाता है। अपना या अपनों का विचार हमें करना है। पल पल में जीवन जीना सीखें। धन्यवाद। धन्यवाद Dr. Gopal. Actually, the story was so touching. Actually, I'm still unable to take out confidence and talk to you or anybody. In fact, that the relationship and then the sentiments and angers and whatever we talk about, it's a one-time story can teach you the lifelong lesson. And I think so the anger story which you tell, I think so every one of us should learn from that one. It's and of course, this is the world where we have seen that people have started giving more and more importance to the, you know, the articles outside the relationships. So the people like more cars, more like valuable gadgets, more like this or that, but not like relationship, not like families, not like this. And ultimately, when we talk about the life, what exactly life is there? Nobody is ready to understand that this where we are heading to. We are millions of the people who are getting up in the morning, and fortunately many of us are not getting up every day. So it is like that. So where to end? My counter questions to you today is, why life is like this? Where we head to life? Everybody says life to be happy, don't do the anger, this, that. Okay, we are happy, but where we are heading to? What is life actually? Basically, ये प्रश्न ही इतना शानदार प्रश्न है। गुरुदेव का एक आर्टिकल यहाँ कोट करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लगभग 60 के दशक में वो लिखा था, जिसमें उन्होंने कई सारे सिंबल्स के थ्रू लाइफ को समझाया। क्योंकि क्या है ना, लाइफ को भी अगर हम क्लासरूम में ले जाके थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली समझेंगे तो उसको उन्होंने एक्शनेबल फॉर्म में समझाया कि एक तरह से देखा जाए तो हम मान ले कि लाइफ इज लाइक, मेरी बर्थडे है 1988, अब मान लीजिए मैं 2088 में जा रहा हूँ, तो 2088 minus 1988 भी मैं कर सकता हूँ कि दिस इज लाइफ, दिस इज वन फॉर्म ऑफ लाइफ, बट दिस इज एक्चुअली नॉट लाइफ। तो यह है, गुरुदेव ने कहा लाइफ को आप मान लो कि लाइफ एक खेल है, खिलाड़ी की तरह जियो। गुरुदेव ने मान लिया लाइफ को एक नाटक है, एक कलाकार की तरह से जियो। उन्होंने एक्चुअली इसको समझने के लिए जब मैं क्या हूं लिखा, तो उन्होंने ये कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर हर किसी के लिए इतना सब्जेक्टिव है
कि मेरे लिए मेरे सपने ही मेरी लाइफ है, मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है वही मेरी लाइफ है, और किसी के लिए जीवन में मुक्ति पाना लाइफ है, किसी के लिए चित्त शुद्धि लाइफ है, किसी के लिए बड़ा बंगला बनाना लाइफ है, किसी के लिए औरों के लिए जीना लाइफ है। और इस तरीके से हम देखें तो बॉलीवुड के कई सारे गाने आप सुनिए, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीवन एक संग्राम है, जीवन के रंगमंच में हम कलाकार हैं। गुरुदेव कहते हैं जीवन एक बुलबुला है जो है अभी। कितनी मजेदार बात गुरुदेव लिखते हैं कि जीवन रूपी बुलबुला, जिस प्रकार से बुलबुले का होना आश्चर्य है, टूटना तो सत्य है। तो मैंने इससे पहले भी जब जीवन प्रबंधन की बात की, मैंने जीवन की बात ही नहीं की, मैं मृत्यु की बात पहले करता हूं कि मृत्यु को अपने पास मानिए तो जीवन का मर्म समझ में आ जाए। क्योंकि मृत्यु क्या है, इस पल अगर आपके सामने बोलते बोलते मैं है से था हो जाऊं, या मेरे पास है से था होते होते 1 मिनट का समय बचे अंतिम सांसों में, उस मूवमेंट में मैं रियलाइज करूंगा कि भाई साहब लाइफ को मैं जो भी था जी लेता। क्योंकि इट इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जिंदगी बुदबुदा है, जिंदगी लहर है, 1000 लहरें आती हैं चली जाती हैं। आप और हम इस जन्म को देख रहे हैं, हमारे 1000 जन्म पहले हो चुके हैं, 1000 आगे होंगे। जिंदगी को गुरुदेव ने कहा संग्राम है, जिंदगी पूरा विश्व है। जिंदगी को गुरुदेव ने कहा संगीत है। तो जिंदगी को अलग अलग तरीकों से गुरुदेव ने परिभाषित किया एनालॉजीज के थ्रू, और उसके थ्रू उन्होंने यही कहा कि इसमें से कोई एक तरीका हम मान लें और उस तरीके से हम इसको जीना बस शुरू कर दें। क्योंकि पता चला समझने में इतना समय चला गया, जो विवेकानंद जी कहते हैं कभी कभी कि कभी कभी क्या होता है कि जब तक जिंदगी की समझ आती है तो जाने का वक्त आ जाता है। तो इस डायमेंशन से चूंकि अपन थोड़ा प्रैक्टिकली, क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हिसाब से, तो हमने हमेशा व्यक्तिगत रूप से उन एक्शनेबल चीजों को पकड़ा कि मुझे किसी ने बता दिया मुस्कुराना ही जिंदगी है, तो मैं कहता हूं चलो मुस्कुरा लेता हूं। अब उसमें पॉजिटिव निगेटिव मुझे डिसाइड करना है। और लाइफ इन इटसेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी। जिंदगी एक अवसर है, जिंदगी को अवसर को सौभाग्य में बदलना है। इसके लिए गुरुदेव ने लिखी मानव जीवन की गरिमा। हम जिंदगी को एक अवसर माने और इसे सौभाग्य में बदलने को हर पल प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली इतना मैं समझने की कोशिश किया हूं, ब्रीफ में अगर कहूं तो सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया एक्चुअली। एंड मैं चंद्रेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि ही विल मॉडरेट नाउ फर्दर। तो गोपाल जी बहुत, और पूर्वा जी बहुत ही ज्यादा, आई कैन से कि इतना टचिंग था और इतना प्रैक्टिकल था। तो मैं अभी बाकी यहीं पे कंक्लूड करके मैं बाकी परिजनों से जिनको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज हाथ उठाएं, और सुनील जी जिनका हाथ उठे प्लीज उनको आप फोकस करके वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर होगा कि आफ्टर कंक्लूजन वो टॉप रैंकिंग वाली लिस्ट को आप लोग एक दूसरे को जरूर पूछें कि आपने कितनों को ग्रेटिट्यूड शो किया, वो जरूरी होना चाहिए। दूसरा, घर में ये इंश्योर हो कि आज हम नर नारी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, बकायदा ट्रॉफी देके, कुछ नहीं देके उसकी फोटो खींचें, सेल्फी खींचें और एक रिवॉल्यूशन पैदा करें। और तीसरी चीज, सॉरी किसी को कहना हो आज ही फोन उठा के कह दें, थैंक यू किसी को कहना हो आज ही फोन उठा के कह दें। फोन बड़ा अच्छा माध्यम है, सुदूर किसी को भी आज ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दें। थैंक यू। यस सर प्लीज। या डॉक्टर गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जीवंत सेशन आपका ये रहा, और जिस तरह से आपने इतनी बातों को इतने सरल तरीके से बतलाया और स्टोरी के माध्यम से बताया, उससे काफी कुछ इंसाइट मिला इसमें। हमारा छोटा सा प्रश्न है, आपने बोला कि भाई हम लोग लाइफ के यूनिवर्सिटी में है, अब पता नहीं नर्सरी क्लास में है कि पीएचडी कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वाकई में काफी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। और मैं वही सोच रहा था कि भाई अगर हम लोग सेल्फ एसेस करें अपने को तो कहाँ पे पाएंगे। एक तो थोड़ा सा आपसे मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर बताएं कि हाँ भाई चेक करना है कि आप नर्सरी में हो कि ग्रेजुएशन में हो, तो क्या कुछ पैरामीटर्स हम देखें, या क्या कुछ अपने आहार व्यवहार में परखें ताकि लगे कि हाँ भाई ठीक है नर्सरी से ऊपर का है, नर्सरी नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा ये। थैंक यू वेरी मच सर, पहले आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सच में प्रश्न मेरे लिए इतना थॉट प्रोवोकिंग हो गया है कि आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल एक ट्रेंड है, इस मोबाइल का एक बड़ा अच्छा यूज होता है, वो होता है ऐसा करने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए। सेल्फी खींचना है, विभिन्न मुद्राओं में खींचना है, सबके साथ खींचना है, वेल्फी खींचना है। और DSM-4 वाले साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, ये कभी कभी बोलती हैं एडिक्शन जिसे कहा गया है, वो अपनी जगह है। लेकिन शांति कुंज में जब गुरुदेव ने भटका हुआ देवता का मंदिर लगवाया,
तो वो 5 शीशे तो मेरे घर में नहीं थे, लेकिन मेरे घर में एक शीशा था, और उस शीशे में खड़े होकर के हर सुबह मैंने खुद से पूछा क्या मैं खुश हूं। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक टेस्ट यही हो सकता है। और जब ये दिन में क्वेश्चन याद आ जाए तो सेल्फी वाला कैमरा, जिसको हम कभी कंघी करने के लिए यूज कर लेते हैं, खाली समय में ऑफिस में बैठे बैठे भी खुद से पूछ सकते हैं, सीरियस ज्यादा नहीं होना है। दूसरी बात कि दूसरों के साथ जो हम व्यवहार चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, मैं उन व्यवहारों की एक लिस्ट बना दूं। मैंने अपनी पूर्वा यहाँ पे प्रूफ है, आप उससे पूछ लीजिए। पूर्वा को मैं कई बार अपॉर्चुनिटी देता हूँ, उसने आज तक इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ही नहीं उठाया। मैंने अपने माँ पिता को अपॉर्चुनिटी दी है, मैं खुल के बोलता हूँ कि मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोग मेरे से क्या क्या चाहते हैं मेरे को बता दीजिए, मेरे बस का जितना होगा मैं करूंगा, मेरी आज पे एक्सपेक्टेशंस है नहीं ज्यादा। ये बोलने की नहीं है, सिर्फ चमड़ी की जुबान नहीं बोल रही है। और दूसरी बात कि कभी कभी क्या होता है, जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ या कोई भी आइडियलिस्टिक बात हमसे करता है ना साथियों, तो लोग सीधे सोचते हैं एक ही बार में 100%। जैसे मैं सत्यवादी होने की बात करूं तो शने शने, और आपने सर कितनी अच्छी बात पकड़ी शुरू से कि वो धीरे धीरे होगा। करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, मुस्कुराने का अभ्यास, मुस्कुराने का अभ्यास, शांत रहने का अभ्यास, शांत रहने का अभ्यास, नमस्ते करने का अभ्यास, नमस्ते करने का अभ्यास, सॉरी बोलने का अभ्यास, सॉरी बोलने का अभ्यास, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का अभ्यास नहीं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना किसको? अपनों के प्यार को। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? पत्नी है हमारी, पति है हमारा, काम ही है इसका। उन सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे, जैसे मैं तो मानता हूँ कि ये लैब मैनुअल है, और इस लैब मैनुअल में आप अपने बच्चे को दीजिए नंबर देने के लिए। मैंने अगर अपने जीवन में सबसे बड़ा इन्विजिलेटर पाया है तो मेरा सृजन, अभी 2 साल 2.5 साल का है वो। उसके सामने मैं जब भी जाता हूँ तो गुरुदेव की वो बात याद रखता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा है कि घर में पल रहा बच्चा एक सूक्ष्म संवेदनशील कैमरा है जो आपको हर पल देखता है। साहब सीसीटीवी तो कहीं कहीं कोने में लगा हुआ है। ईशा वाश्यमिदं सर्वम, ईश्वर सब जगह है, जानते तो है, मानते कब है, लेकिन मेरा बच्चा, और गुरुदेव ने कहा है कि वो सूक्ष्म संवेदनशील कैमरा, मतलब आंखें खोल के हमको कैप्चर नहीं करता, आंखें बंद करके भी हमें कैप्चर करता है। तो घर का सबसे छोटा बच्चा, उसके सामने अब आप उसको मौका दे सकते हैं। और खुद के लिए मैं तो एक ही चीज में कंक्लूड करूंगा, एक मास्टर फार्मूला है, आपको जो जो भी सद्विचार पसंद आते हो 2 तरीके से ट्राई कीजिएगा। गोपाल के शर्मा बोले कि मुझे दूसरे को प्रवचन देना है तो ये 5 विचार मैं दूसरों को बताऊंगा। तो उन 5 विचार में एक क्वेश्चन मार्क लगा कि गोपाल के शर्मा खुद से पूछे कि 1 to 10 के स्केल में मैं इसमें कैसा कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैं खुद से पूछूं क्या मैं सुबह उठता हूं। सद्विचारों की एक लिस्ट बना के उन हर सद्विचार के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा के, फूड एंड मूड, खाते समय क्या मेरा मूड सही होता है। फूड एंड फ्यूल, क्या मैं फूड को फ्यूल की तरह खाता हूं, फूड को क्या मैं न्यूट्रिशन की तरह लेता हूं। सोते समय जब मैं जाता हूं तो क्या मैं मोबाइल 2 घंटे पहले छोड़ के सो रहा हूं। अभी तो हमारी सतह इतनी 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 ऊपर चली गई है कि उससे खुदाई अगर आज शुरू करेंगे तो हो सकता है इस जन्म में अंत तक कहीं सतह छू पाए। अभी सर बहुत जन्म बाकी है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जब आप जैसे बड़े लोग जिनके पास हमारी जितनी उम्र है उतना अनुभव है, तो उस चीज को लेकर के भी जब ये प्रश्न करते हैं, आपका ही अपने आप में बड़ा शानदार स्पिरिचुअल इंसाइट बताता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है लाइफ के प्रति। अगर ये हम में है तो हम किसी को सही करने नहीं जाते। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात करते हुए भी खुद को सुना रहा हूं। मैं ज्यादा इससे उत्सुक हूं कि आपके थ्रू आप इतनी विनम्रता से जो बातें सुन रहे हैं, वो मेरे लिए बड़ा शिक्षण है कि कल को मेरे सामने जब कोई करता है तो हमें भी ऐसे ही ध्यान से सुनना है, अपनी बातें रखनी है। तो मेरे ख्याल से हमेशा अपन क्या करते हैं कि चारों तरफ खुद को बोलते समय, खुद से देखते समय, और उसमें ज्यादा भी नहीं करते, नहीं तो ऐसा होगी हमेशा उसी में। जब आनंद का मन आता है, खुश रहना, शांत रहना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्वेश्चनर्स तैयार करना अपने लिए और उसको खुद से फिल करना, सर ये बड़ा मुश्किल काम है। डायरी वाला काम बचपन से औरों को बताते हैं, अभी भी बच्चों को कहते हैं बेटा डायरी लिखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। बच्चा पूछता है माता जी आपने आखिरी साल कौन सा ऐसे मुहूर्त में डायरी लिखी थी जो आप हमको लिखने कह रही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब खुद जब अपन करते हैं ना, एक बार एक बड़ी अच्छी ट्रेन के अंदर की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक बहन जी जो थी, उनका बच्चा बार बार मोबाइल छीन रहा था उनसे मोबाइल देखने के लिए, और दूसरी तरफ एक बहन जी थी, उनका बच्चा उनके साथ बैठ के किताब पढ़ रहा था। सीन को समझिएगा, एस्टेब्लिश कर देते हैं। एक तरफ एक बच्चे की मम्मी मोबाइल यूज कर रही, माता जी मोबाइल यूज कर रही, बच्चा छीन रहा है, खाऊंगा तभी जब मोबाइल दोगी। दूसरी तरफ एक माता जी किताब पढ़ रही है, उसका बच्चा किताब पढ़ रहा है। अभी जो मोबाइल जिनका छीना जा रहा है, ये बहन जी कह रही है भरी ट्रेन में तेज से दूसरी बहन जी को, बहन जी आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। तो सामने से बहन जी बिल्कुल यही बोलती है, बहन आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे सुनते नहीं है, देखते हैं। और मैं अभी आपको एक एक्टिविटी भी करा सकता हूँ बड़ी शानदार।
आप क्या करिए, जो मैं बोलूं वो आपको करना है। करेंगे आप लोग? बिल्कुल जी जो मैं बोलूं आपको करना है। सामने ताली बजाइए, सामने ताली बजाइए, बाएं ताली बजाइए, लेफ्ट, सामने, राइट, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर। नाक पकड़ लीजिए। देखते हैं, क्या सुनते नहीं है। लाइट और साउंड की स्पीड फिजिक्स भी कहती है। नाक पकड़ने बोला मैंने, पकड़ी आपने कान। हमारा हर पल का व्यवहार, एक पल भी ऐसा नहीं है। हमारे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन क्यों कहा गया है? बच्चे ही हमें सिखाएंगे। अगला युग बच्चे ही बदलने वाले हैं। जिसके अंदर का बचपना जीवित है, जो सीखने को तैयार है हर पल, लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई एम ए प्राउड लर्नर फॉर एवर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे डायमेंशन से शायद कुछ बातें अपन कह पाए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो है मतलब काफी सही ढंग से हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू। धन्यवाद। चंद्रजी साहब, एनीवन नेक्स्ट? एनी परिजन प्लीज एक बार इंडिकेट श्वेता जी, श्वेता जी चाहते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिमाग में चल रहे होंगे हर किसी के। श्वेता जी बोल रही हैं। हाँ, श्वेता जी। थैंक यू गोपाल जी, एंड फर्स्ट थैंक यू ज्योति जी जिन्होंने हमें आपसे कनेक्ट करवाया। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोई शेयरिंग करना चाहती हूँ क्योंकि शायद इसके बाद मैं वापस कर नहीं पाऊंगी। मतलब ये टॉपिक नहीं होगा शायद या कुछ भी। आपने बोला अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, तो लास्ट ईयर की बात है, जब मैं इंडिया गई तो मेरे फादर कुछ बात कर रहे थे और बीच में आके मेरे हस्बैंड ने उन्हें हक किया, और हक करते ही 2 मिनट तो वो एकदम मतलब उनको समझ नहीं आई क्या कर रहे हैं, और फिर 2 मिनट बाद उनकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए, क्योंकि उनको शायद मैंने भी इतनी बड़ी हो गई, शायद छोटे में हक किया होगा, मुझे याद नहीं आता, मैंने उन्हें हक किया, या मेरा भी हाथ नहीं उठ पाया कभी उतने हक करने के लिए। तो मेरे फादर की, फिर मेरे हस्बैंड जब जब जिस से मिले ना उसको हक किया, और वो इंसान एकदम स्तब्ध, क्या बोला जाए, और वो रो पड़ा। मैंने इनको हस्बैंड को बोला कि ये क्या कर रहे हो, हर एक को हक करते रहते हो, हक करते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? बट वो जब वहां से चले गए, वापस यहाँ आ गए, तो 2 दिन बाद जो मुझे रिव्यूज मिले वो अमेजिंग थे। हर कोई कहता है कि हम लोगों को इतने बरसों में ये फीलिंग नहीं आई जो अविनाश ने हमें दी। तो प्लीज आपके थ्रू मैं कहना चाहूंगी, प्लीज हक करने से एक अमेजिंग फीलिंग आती है, अमेजिंग क्लोजनेस आती है जो आप कह नहीं सकते हो, बिना कहे सब कुछ हो जाता है। So थैंक्स इस चीज को वापस रिमाइंड करवाने के लिए, शायद हम वापस ये सब कर सकें। थैंक्स अगेन। मेरे ख्याल से ना ये थेरेपी है, बाकायदा ये थेरेपी है, बाकायदा मतलब ये थेरेपी है, और आपने प्रैक्टिकल देखा है, इसका अनुभव किया है। और मेरे ख्याल से जो ताली बजाना भी होता है ना, ये जो हम लोगों ने ऐसे वाली ताली बजाई, इसके साथ जो ऐसे वाली ताली थी, ये ताली अपने बच्चों के लिए घर में ही बजा ली कीजिए जब भी वो अच्छा करता है। नहीं तो जिन बच्चों को घर में तालियां नहीं मिलती ना, वही बाहर जाके गालियां देते हैं। जिनको घर में तालियां मिलती है वो बाहर दूसरों के लिए तालियां देते हैं। अच्छी बात इस बात से भी मेरे को याद आ गई, एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। महाकाल मंदिर में शांति कुंज में लिखा है गुरुदेव ने बाहर, महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में, कि देवत्व जो है उसकी हालत कैसी होती है बिना प्रोत्साहन के, वैसी होती है जैसे कि गर्मी में दूब सूख जाती है, लेकिन फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे ही प्रोत्साहन का जल वर्षा की तरह उस दूब पर गिरता है वो फिर से हरी हो जाती है। हम प्रोत्साहन देने में ना चूके। आजकल लोगों ने एक बहुत गलत ट्रेंड पकड़ लिया है। कई ऑफिस में किसी को प्रोत्साहन तो कहेंगे मक्खन लगा रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, जिसको बोलना है वो बोलते रहे, आप अच्छा काम कीजिए अच्छे भाव से। नहीं साहब हम तो प्रोत्साहन देते थे, अब हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे वो आदमी देवत्व को नहीं चलाना चाह रहा है, उसकी असुरत्व की वृत्ति है, तो आप क्यों चुप हो गए? आप अच्छा बोलिए, जो अच्छा बोलिए, फोन करके बोलिए, सामने से बोलिए, जिसने अच्छा किया उसको बोलिए। मुदिता चैलेंज, मुदिता चैलेंज, मुदिता चैलेंज। अपनों की खुशी पे सब कोई खुश होता है, औरों की खुशी के पे खुश होके देखिए। जिंदगी के ये प्रैक्टिकल्स हैं। मेरे भाई को कोई सफलता मिली, मेरे साथी को कोई सफलता मिली, मैं उसमें उतना ही खुश हूं जैसे वो मेरी सफलता है। ईगो नहीं होने देता, गला भी ईगो ही नहीं मिलने देता। कहेगा थोड़ा ट्रेंडी नहीं है, बार बार मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यो मैन काइंड ऑफ एटीट्यूड, माय एटीट्यूड, बट ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच।
आज तो सब गले मिलिए ज्योति और आपके लिए, ज्योति और आपके लिए, और वर्चुअली भी गले मिल लीजिएगा। मतलब फोन पे भी जहां तक आज आप वर्चुअली फिजिकली नहीं पहुंच पाए, उनको अपने शब्दों के माध्यम से मैं आपको आज बात बताऊं बड़े दिल की। माता जी को जब भी मैंने बचपन में महसूस किया, उनकी वाणी के उस प्यार से महसूस किया। आज भी जब जीजी डॉक्टर साहब से मिलने ऊपर जाते हैं, जीजी जब एक बार मुस्कुरा के पूछती हैं, और बेटा सब ठीक है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, खाना वाना खा लिया, वो दो शब्द जो होते हैं ना, वो तृप्ति देते हैं जो कोई भी कुछ भी बोलते, क्योंकि लोग जीते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके आसपास चलते हैं, लेकिन उनके प्रोत्साहन के शब्द नहीं निकलते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्या स्कूल ही गए, क्या पढ़ाई पढ़ी हमने, परिवारों को दोष देना होगा, स्कूल को दोष नहीं देंगे। आज भी जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब से जब मिलने जाते हैं, प्रोत्साहन की बात हमेशा उनसे सुनो। चिन्मय भैया से आज ही मिलके आए, प्रोत्साहन की बात, प्रोत्साहन, हमेशा प्रोत्साहन। हम सोचते हैं कि हम अपने बड़ों से जो हमारे आसपास है, ये क्यों नहीं सीखते, कुछ नहीं करना है, बस प्यार से प्रोत्साहन की दो बात कहनी है, नुक्ताचीनी करनी है, कर लें, लेकिन सैंडविच मॉडल के साथ। अगर सच में किसी को क्रिटिक भी करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, पहले नीचे एक बर्गर लगाएं। मैं फास्ट फूड का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये चूंकि मॉडल है। नीचे एक बर्गर लगाएं, बीच में जो सारा वेजीज है वो डालें, बर्गर लगाया मतलब तारीफ की, फिर बीच में वेजीज डाली, तारीफ की, थोड़े से स्पाइसेस बढ़ा के डाले, यानी क्रिटिसाइज किया, फिर झट से ऊपर से बर्गर रख दिया। बर्गर मॉडल, बर्गर मॉडल। हम किसी की अगर नुक्ताचीनी भी करना चाहते हैं, सच में कमी बताना चाहते हैं, पहले उसकी तारीफ कीजिए। लोग क्या होता है ना, तुरंत टूट पड़ते हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं, वो पहले से तैयार है। प्रेजेंटेशन चल रहा है मेरे स्टूडेंट का, अभी पहले ही मैंने तैयारी कर ली है कि 55 कमी दिख गई है इसकी, आज बताऊंगा इसको। और मेरे को अपना टीचर याद आता है, जब वो मेरे को टोकता था तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। दूसरों के साथ वही व्यवहार करूंगा जो मुझे पसंद नहीं। मैं क्यों नहीं उसकी पहले तारीफ करता हूँ, बेटा बहुत अच्छा, तुमने बहुत शानदार किया, वेरी गुड, अल्टीमेट। थोड़ा सा अगर और अच्छा करना है तो देखो ये कर सकते हो, और कुछ नहीं करना, घर में ट्राई करना है, घर में ट्राई कीजिए। पति पत्नी, पत्नी पति, भाई बहन, भाई भाई, पति बच्चा, बच्चा दादा, दादा दादी, देखिए कुछ ऐसा चल रहा है। मतलब आज काफी पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, मैं महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। अनुजा जी का क्वेश्चन है, अनुजा जी का। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया बहुत ही अच्छा और प्रेरणाप्रद रहा आपका सेशन, और थैंक यू कि हमें आपने गुरुदेव की इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें रिमाइंड कराई, और साथ में पूरा समय काल के अनुसार बिल्कुल हमें ये ध्यान दिलाते हुए प्रैक्टिकली सारी चीजें याद दिलाई। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूर्वा जी का धन्यवाद, उन्होंने एक एक्टिविटी के जरिए बिल्कुल जीवंत तरीके से हमें याद दिलाया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों से जब हम बात करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमें ये प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। तो इसका सातत्य बनाए रखिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। नमस्ते। अच्छा, आपने जो मजेदार बात कही, मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने कहा देश काल और समय के अनुसार, इससे मेरे को एक चीज सच में याद आई कि इस समय जब मतलब वहां की लॉकडाउन की कंडीशन तो आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। जिंदगी, वो जो प्रश्न था ना भाई साहब की अध्यात्म और जीवन में हम कहाँ पर हैं, आज परिवार के बीच में जब हम लोग यहाँ पर 90 दिन बिता चुके हैं, तो लगता है कि भाई साहब हकीकत पोल अपनी खुल गई। अभी तक भी जब ऑफिस जाते थे, आते थे, आपने क्या गजब बात कही कि इस समय के अंतर्गत सच में हमें अपनी लाइफ को बड़ा ही बच्चे के लिए भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी थी, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए, बाप को बेटे के लिए, बेटे को बाप के लिए। गजब की बात है सच में। इस समय लैब है पूरी, एक्चुअली पूरा विश्व ब्रह्मांड एक लैब बन चुकी है, और हमारी टीचर प्रकृति हमें सिखा रही है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपने कहा, सच में बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट एक बार मेरे पास आया और बड़े दिल से उसने धन्यवाद करते हुए कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं ये कर गया। तो मैंने उस स्टूडेंट को जो है बड़े प्यार से नमन किया। मैंने उसको एक बात कही, और वो बात मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भाई जब ये बात क्लास में हो रही थी तो तेरे अलावा 60 बच्चे और बैठे थे वहां पे। 60 बच्चों के 2 कान थे, 120 कानों ने इसको सुना था। लेकिन विचारों की सृजनात्मक शक्ति नामक पुस्तक में जैसा गुरुदेव ने लिखा है कि अपनी अभिरुचि के अनुसार, ये तुम थे बेटा जिसने अपनी आंखों से चीजों को देखा, अपनी कानों से विचार को अंदर जाने की अनुमति प्रदान की, अपने दिमाग को मजबूर किया कि इस पे काम करो, अपनी धारणा, विचारना, परसेप्शन, दृष्टिकोण इस आधार पे बनाओ, और फिर अपने सॉफ्टवेयर को तुमने खुद से प्रोग्राम किया, खुद एल्गोरिथम लिखी, और अपने शरीर को खुद से प्रेरित किया। तो मैंने कहा मेरी तरफ से पूरी ऊर्जा निकाल के मैं धन्यवाद आपको देता हूं
कि आपने मेरी बात को प्रूफ करने के लिए अपने लाइफ में उसको एक स्पेस दिया। तो इसी को मैंने कहा बेटा बस यही यज्ञ है कि आप धन्यवाद मेरे को करो, मैं आपको करूं, ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। आप मेरे को, मैं आपको, आप मेरे को, मैं आपको। जो देख रहा है वो कंफ्यूज होता रहे कौन किसको कर रहा है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप जो हमें धन्यवाद देंगे, मैंने इसलिए पीछे विश्वविद्यालय रखा है क्योंकि ये विश्वविद्यालय है जिसने गोपाल कृष्ण शर्मा को इस लायक बनाया कि कहाँ हजारों कोसों दूर हमारे आदरणीय चिन्मय भैया ने आपसे कुछ दिन पहले बात की, उनके मार्गदर्शन से हम आपसे कुछ बात कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है, अच्छा कुछ भी है गुरुदेव का, अच्छा कुछ भी है इस विश्वविद्यालय का, ये हमारी माँ है। और साथ ही साथ अच्छा कुछ भी है तो वर्तमान में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी एक एक तरीके से जैसे गढ़ा जाता है ना हम लोगों को, वैसे डॉक्टर साहब ने गीता ध्यान की कक्षाओं में गढ़ा है। गुरुदेव के साहित्य को हमने पढ़ा है, यहाँ की दीवानों से सीखा है। तो आप लोग के धन्यवाद को मैं गुरु चरणों में समर्पित करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ही देता रहूंगा सदा सर्वदा के लिए। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छा लगा सर। और ये मौका हमने देखा था आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और बहुत कुछ सीखा आपसे, और कोशिश करी कि आपके थोड़ी सी चीजें गायत्री परिवार यूएई को दे सकें। अभी कविता जी का एक क्वेश्चन है, डॉक्टर कविता जी हैं, वो पूछेंगे। अच्छा देखिए, 2 ब्रांड एम्बेसडर आपके पास हैं और भी ब्रांड एम्बेसडर डीएसवी के आपके पास हैं। आप सभी ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कोई गायत्री परिवार से नहीं भी जुड़ा हुआ हो तो अपने परिवार का ब्रांड एम्बेसडर है, अपने खानदान का ब्रांड एम्बेसडर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्लीज कविता जी, सुनील जी एक बार म्यूट करेंगे। नमस्कार गोपाल कृष्ण शर्मा जी। नमस्कार। एक्चुअली शब्द तो ज्यादा है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अभी वो खुदाई शुरू हो चुकी है जो आपने 1 घंटे में जितना हमें मोटिवेट किया। तो एक्चुअली मैं वही पेरेंटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी चली रही थी, अनुजा जी से आजकल मैं गाइडेंस ले ही रही थी, आपने उसमें एड ऑन कर दिया है। और ये बात सही है, आपके जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, ज्योति जी एंड प्रशांत, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों को देख के और बात करके भी हमें बहुत खुशी मिलती है। तो वो एक्चुअली आप लोगों से तो अब शांति कुंज से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हमारा पिछले 1-1.5 महीने से ही शुरू हुआ है, पर ये है कि जब भी इस परिवार की मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं तो एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। प्रशांत के बारे में अभी सब लोगों को पता नहीं होगा, एक्चुअली प्रशांत ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये जो कोरोना के एडमिटेड पेशेंट हैं उनके लिए ये अपना समयदान मतलब समयदान कर रहे हैं। और वहां पे मतलब हमारे हॉस्पिटल के थ्रू कल इन्होंने क्लास भी ली, और वो बात अलग थी कि अटेंडेंस थोड़ी पुअर रही, पर ये है कि प्रशांत का एफर्ट जो है वो कमेंडेबल है। कमेंडेबल है, मेरे ख्याल से इनके लिए बच्चा तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा भाई, आप सबका जो है। भाई साहब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7:27 हो गया है, तो लास्ट क्वेश्चन लेके और जी तो एनी परिजन का कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो। महावीर जी का है। गोपाल जी का और कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जीवन को ये सीखा गया कि जीवन को जिंदा दिली से जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, दिल से जीना चाहिए। और 1 घंटे के सेशन में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ये प्रेरणा देता रहेगा जीवन में कि एक्चुअली कहाँ हमारा वैक्यूम है और उसको हम कैसे खुशी से फिलअप कर सकते हैं। इसके बावजूद भी ये मानव जीवन जो ईश्वर ने दिया है, यह सब कुछ करते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी माइंड में आती है, अपोजिट वैल्यू माइंड में आती है, ईगोज माइंड में आता है। ये एक सत्य है। तो हो सकता है कि पहले से ये हमारा परसेंटेज कम हुआ है, फिल्टर हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस जीवन में इस नेगेटिविटी को कैसे पूर्णतः खत्म करें और किस प्रकार से जीवन को और सार्थक और सामर्थ्यवान बनाएं, इसमें आप कुछ और बता सके तो। मुझे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यारे शब्दों के लिए, और आरंभ से ही आप लोग का आशीर्वाद मिला है। और मेरे ख्याल से
एक मजेदार चीज है कि हम लोग लाइफ को देव संस्कृत विश्वविद्यालय में खासकर जब रहे, इतना प्रैक्टिकल अध्यात्म हमें बताया गया कि लाइफ की रियलिटी ये है कि फूल है तो कांटे भी हैं, ऑक्सीजन अगर अंदर जाती है तो CO2 बाहर भी आती है, शरीर की चमड़ी अगर उतार ली जाए तो इसके अंदर जिस इस शरीर पर हमें बड़ा गुमान होता है उसकी चमड़ी बस उतारने भर से वो बड़ा भयावह दिखता है। तो ये एक शाश्वत सत्य है। जब गुरुदेव की किताब सतयुग की वापसी भी हम पढ़ते हैं तो गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि सतयुग में सत ही सत रहेगा, रज और तम गायब हो जाएगा। ये एक तरीके से डॉक्टर साहब इतना शानदार शब्द है, डॉक्टर साहब अपनी क्लास में उदाहरण देते थे हम लोगों को कि बेटा ये टाइट्रेशन है, जैसे केमिकल्स का होता है, सत रज तम। जैसे कि बाहर की प्रकृति बदलती है, बाहर का मौसम बदलता है, सेम उस वे में परिवर्तनशील संसार में हमारे अंदर की प्रकृति और मौसम भी बदलता है। जैसे वातावरण में हम जाते हैं, जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, जो जो चीजें हमारे कंट्रोल में। वैसे गुरुदेव ने तो सीधे का सब वातावरण छोड़ो, मनस्थिति को बदलने पे काम करो। और आपने कितने शानदार तरीके से स्वयं से ही बताया कि पहले से हैं, धीरे धीरे हम फिल्टर हो रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में बस बार बार एक ही मंत्र है, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। अब एक बार क्या हुआ, मेरे को एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कहा क्या गलत कर रहे हैं साहब? तो बोल गए पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट ही करिए। तो मैंने कहा कि होना तो यही चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत अगर पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट से हो रही है तो उसमें मैंने उनको सिंपल कहा, मैंने कहा आप ऐसा करिएगा कि ऑक्सीजन ही इन करिएगा, ऑक्सीजन ही आउट करिएगा और CO2 अंदर रखे रहिएगा। तो बेसिकली क्या है कि गुरुदेव ने ऐसी जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोग को सिखाई है, तो प्रैक्टिकली इसमें यही हमें लगता है कि हम लोग भटक जाए फिर से घूम के आ जाए। बिल्कुल वैसे ही है। तो मेरे अभी अखंड जैसे पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा था कि हमारा सेंटर पे अगर है ना तो हम ब्लिसफुल हैं ऑलवेज। हम क्या होते हैं, घटनाओं में भटक जाते हैं। एक ही सिर्फ तरीका है, घूम घूम के आता है। इसीलिए उपासना है, डेली कम से कम 8 घंटे से बैठे, खुद के पास है, मीट है। एक इंसान जिससे मिले सालों हो गए, गले से फिर भी किसी से मिल लेंगे, इससे मिले हुए सालों हो गए। इसलिए डेली उपासना, साधना, आराधना का जो गुरुदेव ने सिद्धांत दिया वो इसीलिए था, भटक जाइए पास आ जाइए, भटक जाइए पास आ जाइए, बस। फिर सारी समझ फिर इसके अंदर है ही कि हम भटकेंगे, निगेटिविटीज हमारे चारों तरफ है, लेकिन अपने पॉजिटिव एम्बियंस से यहाँ पर शनै शनै धीरे धीरे शायद हम खुद को ऊपर उठाते चले जाएंगे। और जब आप लोग ये प्रयास करेंगे तो आप सोचिए आने वाली पीढ़ियां उसको कितने शानदार तरीके से कैच करेंगी। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अद्भुत चीज रहेगी। और मैं सच में बड़ा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया इस बारे में कुछ साथ में जोड़ने। इन द लास्ट सर, हम भी आपका थैंक्स कहना चाहते हैं, एंड स्पेशली थैंक्स फॉर गायत्री परिवार। सबसे पहले तो सर आपका, मैम का, हमारे लिए इतना अच्छा सेशन देने के लिए, हम लोगों के पास हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए, इतना दूर रह के भी हम लोग कनेक्टेड हैं। तो ये गुरुजी का काम ही है कि हम लोग दूर होते हुए भी कभी दूर नहीं होने वाले हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आज जितने सभी लोग अटेंडीज हैं जिन्होंने अटेंड किया, हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को भी बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी जैसे हमें मिली है। और उसके साथ साथ स्पेशली प्रशांत, चंद्रेश जी, सुनील जी, डॉक्टर कविता, मतलब बहुत सभी नाम अगर मैं लूँ तो हमारे परिवार के एक है, पर फिर भी स्पेशली इन फॉर दोज पीपल्स कि जो हमेशा यस कि हाँ चलो कुछ करते हैं, हमेशा यस। एंड इसी श्रृंखला में सर ने तो आज बस अमेजिंग 4 चांद लगा दिए हर चीज में। बस ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ मिल गया, साक्षात बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और दोबारा सर बैटरी चार्ज हो गई आज। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक निवेदन रहेगा सभी से, जो अपना दायां हाथ साथ में लाए हो वो ऊपर उठा लें। राइट हैंड अगर साथ में लाए हो, अभी अगर अलमारी में रख दिया हो, बेडरूम में रख दिया हो, ठीक है, थैंक यू। एक बार करिए शाबाश 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 शाबाश। ये इसलिए क्योंकि आपके अंदर की देवत्व की वृत्ति ने और जीवन ने आपको ये समय दिया। इनविटेशन कईयों को जाता है लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। कभी परिस्थिति बिगड़ जाती है, कभी स्थिति बिगड़ जाती है। तो ईश्वर आपके साथ था, हम सबके साथ था, जिसने हमें अवसर दिया। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपन इस अवसर का लाभ उठाएं। और मेरे ख्याल से अगर आज हो सके ना तो नोट्स बना लीजिएगा थोड़े से कहीं पर। आपको जब आपके घर के बच्चे करता देखेंगे ना, भले ही 5 पॉइंट हो 10 पॉइंट हो, उसको भी कहिए तू भी थैंक यू बोल, लेकिन उसको आप बोलेंगे उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा। तो आज से घर की नारी को वो सम्मान मिले जो अगर वो अच्छा बनाए तो उसको बोला जाए अच्छा बनाया है, खाना अच्छा बनाया है, अरे वाह तुमने क्या अच्छा, अरे वाह पानी क्या शुद्ध पानी पिलाया। खुश होने के लिए इतनी प्रैक्टिस होती है। आपके घर से फिर ऐसी संतानें बाहर निकलेंगी जो दुनिया बदल देंगी।
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आप सोचिए कि गुरुदेव की कृपा है जो आज हम सब साथ हैं। तो बार बार युग ऋषि को नमन। आप सबसे यही प्रार्थना है, शांति कुंज वीडियोस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, awgp.org में जाइएगा। और आज मैं आपको कहूंगा, आज सोते समय एक गाना सुनिएगा, एक एल्बम में बता रहा हूँ, आज आपको चैलेंज है, सुनिएगा। AWGP ऑडियोस, awgp.org जो वेबसाइट है, उसमें AWGP ऑडियो सर्च कीजिएगा और उसमें एक एल्बम है जीवन पथ, जीवन पथ, जीवन पथ। और उसका सबसे पहला गीत है बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था। आज उसको सुनते हुए सोइएगा, और अगर डेली उसको सुनते हुए सोएंगे ना, गाड़ी से कहीं जाते हैं तो सुनते हुए जाइए, खाली समय है तो खाली समय में सुनिए। माता जी के गीत है, वीणा पानी जी के गीत है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के गाए गीत है, प्रेरणा गीत सुनिएगा। तो हम लोग की तो मुलाकात कुछ घंटों की थी, और अंत में यही कहूंगा, क्या कहेंगे, जीवन का जो समय हमने लगाया प्रोडक्टिव था। मैंने आपके समय की चोरी ऐसी तो नहीं की, हम लोगों ने आपके समय की चोरी ऐसी तो नहीं की जो बर्बादी हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही आदत नहीं है कि मैं अपना समय बर्बाद करूं और दूसरे का जीवन बर्बाद करूं। तो ये सब देव संस्कृति ने हमें सिखाया है। ये सारी भावनाएं गुरुदेव की सूक्ष्म रूप में हम लोग के साथ पूरे टाइम बने रहे हैं, और सदैव यूं ही बनते रहे, हम लोग उत्साह से काम करते रहे और श्रृंखला चलता है। आज आप सभी एक दूसरे को धन्यवाद देते रहिए। मिलेंगे फिर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात यहाँ पे सबके पास राइट है और लेफ्ट हैंड भी है सबके पास। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और डॉक्टर साहब को पूर्वा जी के लिए रिक्वेस्टेड सबको अनम्यूट किया। एक मिनट के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी एंड पूर्वा जी। और हमने, मेरे हिसाब से हम सब लोगों ने आपकी बातों में से बहुत सारी बातें सुनी हुई भी होगी, परंतु आपने जिस तरीके से और जिस वे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो इतना अच्छा है कि लग रहा है वास्तव में बैटरी रिचार्ज हो गई है। मोबाइल का जो आपने एग्जांपल दिया, मेरे हिसाब से सबको वो इतना छुआ होगा कि जब भी मोबाइल हाथ में लेंगे तो आपकी सारी बातें अपने आप से याद आ जाएगी कि क्या क्या उसके लिए कहा है आपने और कैसे उसको यूज करना है। और आपकी अगर एक बात भी फॉलो करेंगे, मेरे हिसाब से आपकी सारी बातें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि आप 4-5 चीजें लिखिए कि खाना बहुत अच्छा बना या क्या, तो ऑटोमेटिक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, एक के नहीं सबके ही आ जाएगी मेरे हिसाब से कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। या आपने ग्रेटिट्यूड की एक बात कही है तो उसमें दूसरी सारी बातें वैसे ही फॉलो हो जाएगी। हिमा जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच इतनी छोटी छोटी बातों में हमारे को जीवन देने के लिए। आप लोग बस वहाँ पे इन्हीं को प्रैक्टिस करते जाइए, और आप इतनी संख्या में आज वहाँ पर हैं, उसके आगे शून्य जुड़ते जाएं। और मैं यही कहूंगा कि अगली बार जब भी मुलाकात हो तो आप लोगों का ये जो परिवार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू पूर्वा जी। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते हंसते हंसते, नमस्ते हंसते हंसते। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you all.